माउंटेन इज डिजाइन टू किल यू, इसलिए तो हैबिटेशन नहीं है ना वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है परमानेंटली, रह भी नहीं सकता, तो इट इज़ डिजाइन टू किल यू, सो इट इज़ थ्रोइंग एवरीथिंग एट यू माइट बी लकी कि एक किसी एक्सपीडिशन में आपकी तरफ बैड वेदर नहीं फेंका, या किसी एक्सपीडिशन में अवलांच नहीं फेंका आपकी तरफ, बट वो कुछ ना कुछ तो फेंकेगा आपकी तरफ। ब्लास्ट का आवाज़ आया, कंप्लीट डिसोरिएंटेशन, क्योंकि सडन ब्लास्ट आ गया। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे बगल से, मतलब बगल से इन द सेंस मेरे जूते को छू के वो अवलांच निकला है, उसी गली को पूरा कवर करता है। What is so special about Mount Kailash? Oh, yeah. Okay guys, so welcome to this another episode of Roger That with NKC, Ofsalike Qualities की कहानी, ex GTO की जुबानी, powered by Olive Planet, manufacturers of premium military gear. In fact, they were the ones who supplied to the famous Bollywood movie Uri the Surgical Strike. Do check out their website, oliveplanet.in. So today I am sitting with Lieutenant Colonel Yogesh Dhumal, 1425 Maratha Light Infantry, who was ex-Vice Principal of Nehru Institute of Mountaineering. Welcome to the set, sir. Thank you so much. Thank you for inviting me. No, sir, it's a pleasure having you here on the podcast. This podcast is very, very specific to attributes of military leadership. Yeah. And we talk leadership in different domains, in different specialization. That vertical specializations which all three services have to offer to its officers and men. Yeah. One of the finest organizations in the world, Indian Army. So it's a matter of honor to have been sitting here with you, who's been at the apex of Nehru Institute of Mountaineering. Hi guys, welcome to this another bone-chilling episode of Roger That with NKC, Ofsalike Qualities की कहानी, ex GTO की जुबानी, sponsored by Olive Planet, manufacturers of premium military gear. Whatever you see on the set has been sponsored by them. In fact, they were the ones who supplied the gear to the famous Bollywood movie Uri the Surgical Strike. Do check out their website, oliveplanet.in. And मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि this podcast is all about mountaineering and the army. कि ये mountaineering वाली चीज़ क्या है? Army is a platform. It gives you a platform जहाँ पे आप you can pursue a lot of adventure sports. देखो सरल सी भाषा में बताता हूँ कि अगर आप बहुत ही इंटरनेशनल लेवल की कोई खिलाड़ी हो किसी स्पोर्ट में या कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स में हो या चलो रेड बुल में हो, तो यू वुड नॉट थिंक अबाउट कमिंग टू द आर्मी, बट इफ़ यू आर इन द आर्मी एंड इफ यू हैव बॉल्स ऑफ स्टील, ट्रस्ट मी, इट विल गिव यू दैट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन एक्सेल इन एनी काइंड ऑफ अ स्पोर्ट or any kind of an adventure sport. So that's why I have here with me Yogesh sir today. Thank you. So Yogesh sir, let's start infantry. You're an infantry officer, Maratha Light Infantry. Yeah. तो ऐसा क्या हुआ सर कि you chose mountaineering? So firstly, I'm a proud infantryman and a proud Maratha from Maratha Light Infantry. Mountaineering was one of the reasons why I wanted to join the army in the first place. So I had been that वो जो बोलते हैं जो कीड़ा वाला लड़का होता है जो बचपन से पैदा उसके साथ होता है, उसी टाइप का था। पहले किसी गांव में रहता था, बहुत हम्बल से बैकग्राउंड थी, एक सिंगल रूम का घर होता था, वो रेंट पे होता था चौल में, एंड उस टाइप के बैकग्राउंड से आया था, तो पता नहीं था आगे करना क्या है। बट इतना पता था कि एक दो बार जब हमारे गांव के आसपास पहाड़ों में जाता था तो कुछ अच्छा फील होता था। एज बच्चे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे इनलाइटेंड फील होता था या बहुत ज़्यादा जोश टाइप फील होता था, इट विल बी टू मच, बट आई वॉज लाइक मज़ा आ रहा है इसमें। तो स्टार्टेड ऑफ विद दैट ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड एंड कॉलेज लाइफ ऑल्सो। जब आर्मी में जाना था तो दो रीज़न थे, एक एक्शन और एक एडवेंचर। एक्शन तो खूब मिली बिकॉज वी केम इन दैट टाइम ऑफ 2000s जब मिलिटेंसी वॉज एट स्पीक। और एडवेंचर में माउंटेनियरिंग मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सह्याद्रीज में घूमता था काफ़ी, तो माउंटेन से बड़ा लगाव हो चुका था, तो दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ माउंटेनियरिंग। और जब माउंटेनियरिंग किया एक्चुअली पहले तो इनफॉर्मल किया विदाउट कोर्सेस अपने तरीके से दोस्तों के साथ। जब वो किया और जब उसमें हायर लेवल ऑफ माउंटेनियरिंग में जाते गए तो माउंटेन के इफेक्ट समझ में आ गया। इट वाज नॉट अबाउट जस्ट सम काइंड ऑफ एडवेंचर, सम काइंड ऑफ एड्रेनलिन रश, दैट वाज ऑब्वियसली देयर, इट इज़ ऑलवेज देयर, but mountains have a very different way of interacting with you. If you start listening to mountains, especially अभी थोड़ा मुश्किल होता है because people are carrying their mobiles all the time, कुछ ना कुछ डाउनलोडेड है, हर चीज़ को वीडियो फोटो में कैप्चर करना है, तो इंटरेक्शन बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे हो जाता है।
बट उस टाइम पे होता नहीं था. So that interaction was something which was way different from anything I have experienced anywhere else. I have done a lot of sports. I enjoy sports. वो उसमें भी आप एक मेडिटेटिव लेवल पे जाते हो. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, तो बास्केटबॉल के टाइम पे आपके घर पे क्या प्रॉब्लम है, आपके करियर में क्या प्रॉब्लम है, आप कुछ नहीं सोच सकते. आप बस खेल रहे हो उस टाइम पे. यू आर फ्री, यू आर रिलीज्ड. दैट इज़ द फीलिंग आई हैड इन माउंटेन टू अ हायर स्केल. And that is what probably that one aspect, other than the adventure, the thrill of it, वो रिस्क लेने की एक जो मैंने बताया ना कीड़ा होता है, ठीक है, रिस्क लेके उसको पार करना एक अपने आप में एक मज़ा आता है उसका. अदर देन दैट देयर वाज अ स्पिरिचुअल साइड टू इट विच आई स्टार्टेड एंजॉइंग. और जैसे जैसे और बढ़ता गया वैसे वैसे और एक्सपीरियंस होता रहा. आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल. देयर वाज दिस एक्सपीडिशन जिसमें कुछ ऐसा केस हुआ था कि एक पर्टिकुलर कैंप से वापस बेस कैंप मुझे अकेले आना पड़ा. कोई टीम नहीं थी साथ में, कोई भी नहीं था. ग्लेशियरेट टेरेन, क्रेवासेस है बीच में, मुरेन्स है बहुत डिफिकल्ट से, जो सतोपंथ करके एक बहुत फेमस माउंटेन है 7000 मीटर का. उसमें ऐसा हुआ था जब मैं वापस अकेला आया था, और वो कुछ ऐसा क्लैश हुआ था जो फ्रस्ट्रेटिंग था, जिसकी वजह से मैं वापस आ रहा था. बट जब मैं बेस कैंप में पहुंचा, मुझे पता नहीं चला मैं किस चीज़ का क्या इफेक्ट था, बट आई वॉज इन अ ब्लिस. आई वॉज इन डिफरेंट ब्लिस ऑल टुगेदर. मैंने खाना नहीं खाया था. मैं अराउंड 2 बजे निकला था दोपहर के, और शाम के 7-8 बजे मैं अकेला पहुंचा था. अंधेरा हो चुका था और बेस कैंप का डायरेक्शन भी नहीं समझ में आ रहा था. फॉगी हो रखा था थोड़ा सा, बट उसके बावजूद बेस कैंप में सही तरीके से पहुंच गया. पहुंचने के बाद जो मुझे फील आया, मैं किसी बात पे तो खुश था, और आज तक मुझे वो पता नहीं कि मैं किस बात पे खुश था, बट आई वॉज वेरी हैप्पी. तो बेसिकली ये वो हो गया ना सर कि बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात बोलते ना अपने यहाँ पे. पाळण्यात दिसतात, हां, पाळण्यात दिसायला लागले होते, कारण लवकर चालायलाच नाही सुरुवात केली. पण असं जसं आपण जेव्हा रांगत असतो, ठीक आहे, यू आर नॉट इवन स्टार्ट वॉकिंग, आय यूज टू क्लाइंब द फर्निचर. नो प्रॉब्ली तेच म्हणता येईल की द जर्नी पाय दिसले होते. तो सर व्हाई डिड यू जॉइन द आर्मी? कहाँ पे, कैसे, क्या हुआ, मतलब फ्रॉम वेयर यू आर एन एलुमनस ऑफ? SPI, Services Preparatory Institute, which is in Aurangabad, built by Maharashtra government specifically for helping Maharashtrian domicile people to go into army or armed forces. तो उसके बाद सर then you? Thereafter, then I attempted my first attempt of NDA, in which I was a die-hard Air Force guy. Didn't want Navy and Army that time, nothing against them, but तो उस टाइम पे मेरे आई साइट में मेडिकल में प्रॉब्लम हो गया. तो फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर SSB वगैरह. बैंगलोर, इनफैक्ट दिस सेम सिटी आई वाज गोइंग थ्रू माई मेडिकल्स. तो उसके वजह से एयरफोर्स से रिजेक्ट हुआ, आर्मी नेवी ऑफर हुआ. बट आई थॉट लेट मी जस्ट वर्क ऑन माई आई साइट टिल द टाइम आई हैव टाइम. एंड आफ्टर ग्रेजुएशन फिर वापस आई साइट ठीक करके एयरफोर्स के लिए आता है. तो ग्रेजुएशन कहाँ से किया सर आपने? फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे. ओह, द फेमस FC road. द फर्ग्यूसन कॉलेज जो सॉर्ट आउट बाय एक्स NDA स्पेशली NDA कैडेट्स ओवर देयर फॉर ऑल द राइट रीजंस. काफ़ी बॉल पार्टनर्स वहीं से जाते हैं जो बॉल डांस के पार्टनर्स होते हैं लास्ट में. सो फर्ग्यूसन कॉलेज वाज अ ग्रेट एक्सपोजर फॉर मी. आई वाज वेरी लकी. मतलब इन अ वे आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी. जो बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो वही NDA जो रिजेक्ट हुआ, विच वर्क वंडरफुली फॉर मी इन फर्ग्यूसन कॉलेज, बिकॉज आई मैनेज टू एक्सपोज माई सेल्फ टू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने क्लासरूम छोड़ के बाकी सब किया फर्ग्यूसन में, फ्रॉम डिबेट कॉम्पिटिशन्स टू एडवेंचर्स टू स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स टू अरेंजिंग इवेंट्स, बिग इवेंट्स एंड ऑल दैट. वो एक्सपोजर आई थिंक हैज हेल्प्ड मी अ लॉट इन लाइफ. एंड प्लस ट्रैकिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैकिंग इन सह्याद्रीज. एंड फिर सर उसके बाद यू रोड CDSE, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. आई वेंट फॉर CDS. तब तक चश्मे का नंबर बढ़ गया था, तो इट वॉज क्लियर कि एयरफोर्स तो नहीं मिलना है. तो सेकेंड चॉइस वॉज आर्मी. सो वेंट फॉर आर्मी, क्लियर्ड इन अगेन द फर्स्ट अटेम्प्ट. कहाँ पे? भोपाल में किया था SSB. और उसके बाद मेडिकल वहीं पे होता है, तो वो भी मेडिकल भी क्लियर हो गया. एंड उसके बाद देन आई जॉइंड IMA इन 2001. तो सर ये लाइक वी नो ऑफ रेड बुल, राइट? तो एक्सट्रीम एडवेंचर स्पॉट्स आउटडोर, रेड बुल इज नोन फॉर दैट. तो there are so many adventure sports, right? Let's say I'm a paragliding pilot, I'm a diver also. तो सर ऐसा क्यों है सर कि still in the extreme adventure sports community, why still mountaineering considered the most dangerous sport? ऐसा क्यों है सर? मतलब मुझे पता है डाइविंग में भी है ये, क्योंकि पैनिक अगर पानी के अंदर मचा दिया तो देन तो यू फिनिश्ड. बट स्टिल इट्स अ टीम, आसपास टीम होती है. यू हैव ऑक्टोपस. ऑक्टोपस इज योर सेकेंडरी ब्रीदर, जहाँ से आप ले सकते हो. येलो कलर का होता है कि पानी के अंदर डार्क में भी येलो दिखना चाहिए. ऑक्टोपस होता है आपके पास में एक.
तो फिर भी आप आस पास में रहोगे, बड़ी रहेगा कुछ नहीं तो यार तू लगा ले यार, तू हवा ले ले, बट स्टिल यू कैन मैनेज, कुछ ना कुछ कर सकते हैं थोड़ा बहुत. बट वाई माउंटेनियरिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस सर, ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं अपोलॉजीज टू एनी अदर पर्सन हु इज़ इन अदर फील्ड्स ऑफ एडवेंचर, जो मैंने भी कर रखे हैं, स्कूबा डाइविंग भी कर रखा है. बट माउंटेनियरिंग का क्या होता है, जैसे आपने कहा कि कुछ कर सकते हैं डाइविंग में, वैसे तो माउंटेन में भी टीम होती है आपके साथ में, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. एक चीज़ होती है एक्सेसिबिलिटी. ठीक है, माउंटेनियरिंग का आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे इतना दूर है वो फ्रॉम सिविलाइजेशन, कंडीशंस इतनी टफ है, तो एक्सेसिबिलिटी की जब आपका कोई इमरजेंसी आ गया वहाँ से रेस्क्यू करना, अनलेस एरियल रेस्क्यू हो, जो कि चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स ख़राब मौसम की वजह से होता है, और ख़राब मौसम में फिर आपके बस हेलीकॉप्टर भी नहीं आ सकता. तो आपका जो टाइम लगने वाला है टू रिएक्ट, दैट इज़ ह्यूज, एंड द टाइम दैट यू हैव फॉर रिएक्शन टू सेव दैट पर्सन इज़ मच लेस. एक फ़र्क ये होता है. एंड द मेजर डिफरेंस इज जो हम माउंटेनियरिंग में सिखाते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सब्जेक्टिव हैज़ार्ड एंड एन ऑब्जेक्टिव हैज़ार्ड. ऑब्जेक्टिव हैज़ार्ड वो होता है जो है वहाँ पे, आप उसका कुछ कर नहीं सकते, वो ऑन द स्पॉट है, वो आपको हिट करेगा नहीं करेगा आपको पता नहीं है. सब्जेक्टिव हैज़ार्ड वो होता है जो आपकी गलती से होता है, या आपके हाथ में कुछ तो था करने का उसके बारे में. तो माउंटेनियरिंग में एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एडवेंचर जो मैंने क्लाइंबिंग, स्कूबा डाइविंग सब में देखा है, माउंटेनियरिंग में क्या है कि ऑब्जेक्टिव हैज़ार्ड जो है, जिसके बारे में आप कुछ कर नहीं सकते हैं, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा जजमेंट लगाओगे, बट वो आपके हाथ में है ही नहीं. ये फैक्टर्स बहुत ज़्यादा है. हर एक एडवेंचर में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हैज़ार्ड होता है, बट माउंटेनियरिंग में ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव हैज़ार्ड है. आप किसी भी अवलांच कब आएगा, क्रेवास कब खुलेगा, वेदर कब ख़राब होगा, और वेदर ख़राब होगा तो एक्सट्रीम में ख़राब होगा. वो जैसे फॉर एग्जांपल पैराग्लाइडिंग में आपका विंड्स जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन विंड्स कभी आपको इफ़ेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन फिर वो एक फैक्टर हुआ. उस एक फैक्टर में भी आपके कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, आपके पास प्रेडिक्शन लेवल्स है कुछ जो कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकते हैं. माउंटेन में 1 घंटे में, आई विल गिव एन एग्जांपल. आई वाज इन सियाचिन. हम लोग मैं कंपनी कमांडर था एक पोस्ट पे, और उसके अंडर 4-5 अलग अलग पोस्ट आती थी. हर एक पोस्ट पे जाने के लिए 6 से 7 घंटे लगते थे. तो हम लोग निकले, बिल्कुल बढ़िया वेदर था, बहुत क्लियर वेदर था, इनफैक्ट ज़्यादा गर्म ही था. तो हम लोग निकले वहाँ से बेस से, और एक पोस्ट पे जा रहे थे. वो पोस्ट 150 मीटर बची थी सामने, और दिख रही थी सामने. और उस टाइम पे, अब काराकोरम हैज़ अ वेरी डिफरेंट, वाई सियाचिन इज़ सो डिफिकल्ट, बिकॉज काराकोरम रेंजेस इटसेल्फ हैज़ अ वेरी डिफरेंट वेदर पैटर्न एज कम्पेयर टू हिमालयस. हिमालयस आई वुड से इज़ फार सेफर देन काराकोरम व्हेन इट कम्स टू वेदर पैटर्न्स. तो काराकोरम में सब कुछ अचानक होता है, और आधे घंटे पहले बिल्कुल क्लियर, एब्सोल्यूट क्लियर वेदर, हम गर्म हो रहे हैं, हम लोग जैकेट उतार रहे हैं, और आधे घंटे में ब्लिज़ार्ड स्टार्ट हुआ. डू यू नो व्हाट अ ब्लिज़ार्ड इज़? सो फॉर जनरल पब्लिक, ब्लिज़ार्ड इज़ समथिंग वेयर बहुत ज़्यादा तेज़ विंड्स चल रहे हैं, साथ ही में स्नोफॉल हो रहा है, साथ में वाइट आउट हो गया है, और वाइट आउट में आप कंप्लीटली डिसोरिएंट हो जाते हो. मतलब जैसे जहाँ पे अभी कैमरा है वो नहीं दिखाई देगा, इस डिस्टेंस पे 5 या 6 मीटर पे कोई बंदा है वो नहीं दिखाई देगा, इस लेवल का वाइट आउट है. और आप चल रहे हो स्नो में जो कि वाइट है, तो सब कुछ वाइट हो गया, आपके ऊपर नीचे राइट लेफ्ट सब कुछ वाइट है. सो आप अगर वो रिज पे चल रहे हो और पतली रिज है, आप कब रिज को छोड़ रहे हो और आप साइड में जा रहे हो आपको पता भी नहीं लगेगा. डिसोरिएंटेशन इज कंप्लीट डिसोरिएंटेशन. ठीक है, तो वही हुआ हमारे साथ, और हम उसमें फंसे. अब मैं तो यंग सा था बिल्कुल, उस टाइम पे जोश भी था ज़्यादा था, और ब्लिज़र्ड में आपके हाथ पैर मतलब लिटरली 30 सेकेंड्स, 1 मिनट के अंदर जमने शुरू हो जाएंगे. तो वही हुआ, और वो पेनफुल होता है बहुत, सब जगह पेन हो रहा है आपको, हवा मुंह पे हवा लग रही है, आप आँख नहीं खोल पा रहे हो, आपने गॉगल पहन रखा है, उसके ऊपर बर्फ़ जमे जा रहा है, आप वाइपर की तरह उसको हटाए जा रहे हो, और उससे हाथ और भी जमे जा रहा है, ग्लव्स गीले हो चुके हैं, सब हुआ, पेनफुल था. मुझे ऐसा लगा कि पोस्ट में पहुंच जाते, मुझे जनरल डायरेक्शन पता था, इस डायरेक्शन में हम चल रहे थे, पोस्ट में चले जाता हूँ, वहाँ भी कंफर्टेबल हो जाऊँगा. और मैं मुश्किल से 4-5 कदम लिए थे. वो कदम लेना भी बड़ा मुश्किल था, बिकॉज हवा एग्जैक्टली सामने से आ रही थी और पुश कर रही थी हमको ऑफ द रिज. फॉर्चुनेटली हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस पोर्टर था. वो पोर्टर ने कैसे, तो पता नहीं, दैट दोज गाइज आर अमेजिंग, दे आर सुपर ह्यूमन्स. उसने कैसे तो मेरे साथ कैचअप किया और मुझे पकड़ के नीचे बिठाया. बोला साहब हिलना नहीं यहाँ से. बोला साहब, मैं बोला बहुत ठंड लग रही है, सब कुछ जम रहा है. बोला साहब गर्म रहता है. अब मैं समझा नहीं कैसे गर्म रहना है. उसने क्या किया, एक आइसेक्स लिया जो उसके पास था, वो एक जगह गाड़ा. बोला साहब इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट दरिया है, हमको पता भी नहीं लगेगा हम कब जाएंगे,
तो ये आइसेक्स हमारा रेफरेंस मार्क है, आप हमको इसके आसपास बैठना है, और हम दोनों बैठ गए नीचे स्क्वाटिंग पोजीशन में, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा और हम ऑन द स्पॉट स्क्वाट में ही वॉक कर रहे थे जस्ट टू कीप द बॉडी वार्म। और उसके बाद फिर कभी उसका हाथ मेरे जैकेट में जा रहा है, मेरा हाथ उसके जैकेट में जा रहा है, क्योंकि सब कुछ ठंडा पड़ रहा था। सो दैट इज़ काराकोरम्स, थिंग्स कैन चेंज ड्रास्टिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स जो बहुत ज़्यादा है, ऐसा एक नहीं है बल्कि ऐसे 10-12 हज़ार्ड्स है जो आपके हाथ में नहीं है, जो माउंटेन में हो सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई प्रॉब्ली माउंटेनियरिंग इज़ द मोस्ट डेंजरस एडवेंचर दैट यू कैन हैव। सर व्हाट इज द डिफरेंस सर, ये इतने टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखते हैं ना, ट्रैकिंग, क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग, हाइकिंग, तो व्हाट इज द डिफरेंस सर? देखो, आइडियली आई वुड से if somebody wants to get into mountaineering, trekking, whatever, don't get into these terminologies. जो आपको पहाड़ अच्छा लगता है, आपके विद इन कैपेबिलिटी लगता है, आप चढ़ते जाओ। बट अगर टेक्निकली बात करें तो ट्रैकिंग बेसिकली एक नॉन टेक्निकल वे ऑफ वॉकिंग इन द माउंटेन्स है, जहाँ पे आपको आइस वॉल चढ़ना है, रॉक फेस चढ़ना है, ये सब नहीं है, या है भी तो बहुत असिस्टेड होगा, जहाँ पे आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है कि आप खुद चढ़ सकते हो। तो ट्रैकिंग इज़ मोर लाइक अ फन काइंड ऑफ एंडोरेंस काइंड ऑफ अ वॉक। हाइकिंग एट लोअर एल्टीट्यूड्स सेम ट्रैकिंग की तरह ही है, यू आर जस्ट वॉकिंग इनटू मे बी इनटू ट्रॉपिकल जंगल्स, इट कैन बी इनटू हिमालयाज, इट कैन बी एनीवेयर। नो, इट्स मोर ऑफ अ वॉक दैट यू आर गोइंग टू एन्जॉय विद सम अमाउंट ऑफ फिजिकल टफनेस। माउंटेनियरिंग और ट्रैकिंग जो है वो एंडोरेंस लेवल पे सेम हो सकते हैं, कि एंडोरेंस दोनों में बहुत अच्छा चाहिए, बट माउंटेनियरिंग में आता है टेक्निकल स्किल, दैट्स व्हाट डिफरेंशिएट्स। इट इज़ नॉट द एल्टीट्यूड, जो कई बार लोग बोलते हैं कि इतने एल्टीट्यूड के ऊपर माउंटेनियरिंग स्टार्ट होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका टेक्निकल स्किल कितना लगेगा उस जगह पे और आप में कितना है, उस बेसिस पे अगर आप गए जहाँ पे आपको रोप फिक्स करनी पड़ रही है, आइस वॉल को चढ़ना पड़ रहा है, रॉक फेस को चढ़ना पड़ रहा है, और प्लस आपका जो ड्यूरेशन है उसमें आपको कई बार कैम्प करना पड़ रहा है अलग अलग जगह पे, देन दैट वुड बी माउंटेनियरिंग। लाइक ट्रैकिंग आप 1 दिन की भी कर सकते हो, आप 10 दिन की भी कर सकते हो। वैसे माउंटेनियरिंग जनरली आपका 1 दिन में तो होने लायक नहीं होता है, तो वो फ़र्क है बेसिकली दोनों तीनों में। तो सर लेट्स से इन इंडिया इफ आई वांट टू बिकम अ माउंटेनियर, लाइक मेरे को जीरो नॉलेज है सर, लाइक बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, थोड़ा बहुत जो सर्विस में रहते रहते कभी इंडिया जनरल आया कि हाँ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स एंड 3-4 इंस्टीट्यूट्स जो थोड़ा बहुत है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि सर आप आम जनता के लिए थोड़ा सा समझाओ कि अगर किसी को माउंटेनियर बनना है तो व्हाट आर द स्टेप्स दैट पर्सन शुड फॉलो। ओके, माउंटेनियरिंग सबसे पहले तो एक चीज़ लोगों ने समझना चाहिए, जो नॉर्मली जिन्होंने कभी किया नहीं है वो सोचते हैं कि माउंटेनियरिंग मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लोड उठा के बहुत अल्टीट्यूड पे बहुत लंबे डिस्टेंसेस या बहुत लंबे टाइम तक चलना आना चाहिए। वो माउंटेनियरिंग नहीं है, वो मैंने जैसे बताया वो आपका एंड्योरेंस लेवल है, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। माउंटेनियरिंग के लिए आपको टेक्निकल चीज़ें सीखनी है, आपको सीखना है कि पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट फेस को चढ़ना कैसे है, चाहे वो आइस वॉल हो, रॉक फेस हो। सेकेंडली उसमें सेफ्टी कैसे इंश्योर करनी, सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे टीम की, इंक्लूडिंग पोर्टर्स वगैरह जो भी आपके साथ चल रहा है। तो इन सब का आप कैसे इंश्योर कर सकते हो सेफ्टी, इसका टेक्निकल स्किल होता है। इट्स अ वेरी टेक्निकल काइंड ऑफ एक्टिविटी, इट्स नॉट जस्ट प्योर एंड्योरेंस और ब्रूट फोर्स जो नाम की चीज़ है। तो अगर आपको माउंटेनियरिंग प्रॉपर सीखनी है तो इंडिया में आप सबसे पहले आपके कोर्सेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर ट्रैकर वगैरह हो तो आपको ईजी जाएगा वो कोर्सेज में जाना। आपको जिसमें जो कोर्सेज जो इंडिया में चलते हैं, जो फॉर्मेटेड कोर्सेज हैं, उस हिसाब से बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स होता है 28 दिन का, अलग अलग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। जैसे कि तो इंस्टीट्यूट्स पे आता हूँ तो बेसिक में वो आपका अगर ए ग्रेड आता है तो A B C अलग अलग ग्रेड होते हैं। ए ग्रेड अगर आपका आता है आप क्वालिफाई करते हो एडवांस कोर्स करने के लिए। तो एडवांस कोर्स अगेन 28 दिन का है, जिसमें आप एडवांस टेक्निक्स और सीखोगे, और उसके अलावा एक्सपीडिशन प्लानिंग विच इज़ द मेजर एस्पेक्ट ऑफ एडवांस कोर्स। उसके बाद फिर अगर आप एडवांस कोर्स करने के बाद एज अ माउंटेनियर, एज अ मेंबर, टीम लीडर, यू आर क्वालिफाइड नाउ। बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि उसके बाद आप सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी करो, जो कि 21 दिन का कोर्स होता है। एज ऑफ नाउ 2 इंस्टीट्यूट चला रही है, NIM और HMI, जिनके बारे में डिटेल में बात करूँगा। तो ये सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स करना आई वुड सजेस्ट कि जो भी अच्छा माउंटेनियर बनना चाहता है, जो सिर्फ पर्टिकुलर फिक्स ड्रॉप को फॉलो नहीं करना है, वो प्रॉपर टेक्निकल माउंटेनियर बनना चाहता है, दे शुड डेफिनेटली लर्न सर्च एंड रेस्क्यू। और लास्ट में एक आता है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसको हम बोलते हैं MOI। तो MOI उनके लिए जिनको एज इंस्ट्रक्टर या तो कॉर्पोरेट कंपनीज में या इंस्टीट्यूट्स में सर्व करना है, तो उनके लिए MOI मैंडेटरी हो जाता है। अदरवाइज MOI में आप माउंटेनिंग स्किल एज सच अलग से नहीं सीखते हो, बट वो स्किल सिखाना सीखते हो। तो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके लिए है।
तो ये जो कोर्सेज चलाते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर 4 इंस्टीट्यूट्स आती है जो नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाते हैं या नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट जाते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जिम जिसको बोलते हैं, तो वो है। उसके बाद फिर उत्तरकाशी उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जहाँ पे मैं था एज वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद फिर हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग, और लास्ट में जो आती है वो अभिमास आती है, सॉरी माय मिस्टेक, निमास आती है जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स, तो एडवेंचर स्पोर्ट्स, तो वो अरुणाचल में है। तो ये 4 इंस्टीट्यूट्स तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो गई। इसके अलावा एक अटल बिहारी इंस्टीट्यूट फॉर माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स है जो कि मनाली में है, वो अंडर स्टेट गवर्नमेंट आती है, बट वो भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है जिनका सर्टिफिकेट काउंट करता है। तो और स्टेट लेवल भी है, जैसे सोनम ज्ञानसो है जो ITBP चलाती है इन सिक्किम, और उसके अलावा एक स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट है जो कि माउंट अबू में है राजस्थान में, तो वो गुजरात गवर्नमेंट की है लेकिन माउंट अबू में लोकेटेड है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट से यहाँ से आपने बेसिक कोर्स एडवांस कोर्स कंप्लीट करना है। अभी जब माउंटेनियरिंग की बात करते हैं कि हम माउंटेनियर बनना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, माउंटेनियर बनना इज़ नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन कोर्सेस। यहाँ पे लोग माउंटेनियरिंग करते हैं जो जिन्होंने कोर्सेज में जो है कोर्सेज नहीं भी करके लोग माउंटेन चढ़े हैं, एवरेस्ट भी चढ़े हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको सही में एक माउंटेनियर, जो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ कि एक होता है जुमारर, एक होता है माउंटेनियर, ये टर्म आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। जुमारर और माउंटेनियर में फ़र्क ये है कि जिसको माउंटेनियरिंग में खुद जाके अपनी रोप फिक्स करनी आती है, अपने सारा इक्विपमेंट यूज़ करना आता है और वापस भी सेफली सबको ला सकता है, वो है माउंटेनियर। ज़्यादातर जो होता है वो जाते हैं, शेरपा सब कुछ रोप वगैरह फिक्स करेंगे, आप बस जुमार करके एक इक्विपमेंट आता है जो रोप में फंसाने के बाद वो सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं जाता, तो वो सेफ्टी देता है और साथ में क्लाइंबिंग में भी हेल्प करता है। तो ज़्यादातर माउंटेनियर्स वही कर रहे हैं। सो दोनों में फ़र्क अगर करना है, आपको माउंटेनियर बनना है, तो आप ये कोर्सेज के थ्रू बेसिकली सर फिर ये, सॉरी आई एम कटिंग यू, एवरेस्टर और माउंटेनियर में क्या डिफरेंस है फिर? यही है। देखो, एवरेस्ट में मैं आपको बताता हूँ, एवरेस्ट इज़ अ वेरी टफ काइंड ऑफ एक्सपीडिशन। ऑब्वियसली हाईएस्ट है, मतलब उसमें अगर एक डेथ जोन नाम का चीज़ रखा हुआ है, 8000 मीटर के ऊपर जब आप जाते हो तो उसके बाद जो जोन शुरू होता है जो आप क्लाइम कर रहे हो उसको डेथ जोन बोला जाता है। तो मतलब ऑब्वियसली वो टफ़ है और रिस्की है। तो माउंट एवरेस्ट इज़ डेफिनेटली टफ, बट द मेन थिंग इज़ कि आपको माउंटेनियरिंग एज सच आप एक्चुअली नहीं कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि जैसे मेरे कुछ इंस्ट्रक्टर्स गए थे एवरेस्ट में, तो उन्होंने बताया कि हम आईसेक्स ले गए, तो जो मतलब सेकंड हैंड थर्ड हैंड ऑफ माउंटेनियर बोलते हैं उसको, क्योंकि वो चाहिए ही चाहिए आपको माउंटेनियरिंग के लिए। तो वो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे शेरपा ने बोला आप आईसेक्स की लाए हो, आईसेक्स की ज़रूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज़ सेट फॉर यू, यू आर क्लाइंबिंग बेस्ड ऑन वट एवर ऑलरेडी बीन सेट। ये एक फ़र्क थोड़ा है कि अगर आप माउंटेनियर हो, जैसे मैंने बताया कि माउंटेनियरिंग में आपको खुद वो सारी चीज़ें करनी आनी चाहिए। तो एवरेस्ट में आपको ज़रूरी नहीं कि आप माउंटेनियर ही हो, जो कि आप वहाँ पे देख भी सकते हो। तो काफ़ी लोग आते हैं जिन्होंने कभी माउंटेनियरिंग की नहीं है, ना कोर्सेस ना कभी एक्सपीडिशन किए हैं, बट वो भी आते हैं जिनको इक्विपमेंट के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन वो भी सबमिट कर जाते हैं। तो इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट्स ईजी, वो फिज़िकली बहुत डिमांडिंग है, बट माउंटेनियरिंग एज सच अगर देखा जाए तो वो वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास चॉइस भी नहीं होती। अगर आप अच्छे माउंटेनियर भी हो तो भी आपको वही सिस्टम फॉलो करनी है ऑन द ट्रेडिशनल रूट्स, तो वो ज़्यादा चॉइस मिलती नहीं है वहाँ पे। बट अदरवाइज माउंटेनियरिंग और एवरेस्ट में इतना एक फ़र्क है। तो और दूसरा एक बहुत फ़नी सा फ़र्क है कि जो एवरेस्ट चढ़ते हैं, सो देयर इज़ दिस थिंग ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ, पुराने लोगों में नहीं देखा था मैंने, बट अभी देखता हूँ कि एक टाइटल जोड़ते हैं वो एवरेस्टर, विच इज़ ओके, कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बाकी 8000 मीटर के पीक चढ़ूँ, K2 या लोत्से जो 8000 मीटर के ही है, उतने ही टफ है, वो चढ़ूँ तो लोत्सेयर, K2R, या मैं और कोई माउंटेन चढ़ूँ, जैसे मान लो मैं लद्दाख में नुन कुन चढ़ता हूँ तो मैं नूनर कुनर ये बोलना शुरू कर दूँ तो इट विल साउंड फनी, राइट? सो दैट इज़ वन ट्रेंड विच है जो एवरेस्ट में बिल्कुल अलग है एज कम्पेयर टू एनी अदर माउंटेन जब लोग चढ़ते हैं। दैट इज़ वन मोर डिफरेंस दैट विल हैव व्हेन दे क्लाइंब एवरेस्ट। So sir, what is more difficult to climb, like K2 or Mount Everest?
ज़्यादा चैलेंजेस K2 देगा, आई वोंट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है, बिकॉज आप एवरेस्ट पे गए और एवरेस्ट पे मौसम बहुत ख़राब निकला आपके समिट अटेम्प्ट में, तो उससे टफ तो कुछ भी नहीं है। वही आप K2 पे गए और मौसम बिल्कुल साफ़ रहा, तो आप कहोगे एवरेस्ट ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो हर एक का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पूछे कि फुटबॉल ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बास्केटबॉल ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो वो डिफरेंस है इसमें। I think sir there was a movie on this, some American movie that ki they said that ki Everest चढ़ना was not something really important or interesting for them. I'm forgetting the name of the movie, but they wanted to climb K2 and they lose a lot of people because K2 happens to be, I think Godwin Austen is the route, right sir? करेक्ट, Right, so that route is a little bit. दैट वाज द फर्स्ट टीम जो किया था। अभी उसमें क्या है, एवरेस्ट में सेटअप बहुत अच्छा है, बिकॉज मोस्ट पॉपुलर है, कमर्शियली मोस्ट वायबल है, तो उसमें सब कुछ सेटअप है। मतलब बेस कैंप पे पिज़्ज़ा मिलेगा आपको, बर्गर मिलेगा, तो जबकि यहाँ पे आप चावल दाल पे निकाल रहे हो या ऐसे कुछ हाई न्यूट्रिशन लेके जा रहे हो, साथ में बना रहे हो, तो K2 में इतना सेटअप नहीं है। तो एवरेस्ट विल फील ईजियर बिकॉज सेटअप सब कुछ बहुत अच्छा है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनहांस सेटअप तो है। आप बोल रहे हो जो K2 में कमर्शियल नहीं है। वायबिलिटी इज मेकिंग इट अ लिटिल ईजियर। लिटिल ईजियर टेक्निकली इनटू क्लाइंबिंग, एंडोरेंस वाइज दोनों में उतना ही चाहिए, एंडोरेंस एंड योर डिटर्मिनेशन, योर मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि माउंटेन आपको कभी इजी नहीं करेगा। माउंटेन आप जो मर्जी जाओ, 5000 मीटर का जाओ, 6000 मीटर का जाओ, या आप सह्याद्री में चले जाओ यहाँ पे महाराष्ट्र में, इट विल नेवर मेक इट ईजी फॉर यू। तो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सर? 8000 मीटर चढ़ना, 8848 एवरेस्ट, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ माउंटेनियरिंग पोस्ट माउंटेनियरिंग सर? मतलब खत्म कर दिया या समिट हो गया? एनी माउंटेन फॉर दैट सेक, एवरेस्ट और एनी अदर माउंटेन। एक क्या होता है कि माउंटेन्स जो है ना, दे आर बेसिकली, इफ यू लुक एट दी कंप्लीट एनवायरनमेंट देयर, जो वहाँ पे माहौल है, तो माउंटेन इज डिजाइन टू किल यू। इसलिए तो हैबिटेशन नहीं है ना वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है परमानेंटली, रह भी नहीं सकता, तो इट इज़ डिजाइन टू किल यू, सो इट इज़ थ्रोइंग एवरीथिंग एट यू। यू माइट बी लकी कि एक किसी एक्सपेडिशन में आपकी तरफ बैड वेदर नहीं फेंका, या किसी एक्सपेडिशन में अवलांच नहीं फेंका आपकी तरफ, बट वो कुछ ना कुछ तो फेंकेगा आपकी तरफ। अब उसको टैकल करते हुए जाना, इसके लिए आपको स्किल तो चाहिए ही, आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा स्किल मैं बताता हूँ माउंटेनियरिंग में, विच जनरली यंगर जनरेशन ओवरलुक्स, एंड टेक्निकल स्किल को सुप्रीम मान के चलता है, विच इज़ रिक्वायर्ड डेफिनेटली। लेकिन सबसे बड़ा स्किल माउंटेन में, बिकॉज लाइक आई सेड, देयर आर लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव हजार्ड्स, जो सिर्फ आप जजमेंट ले सकते हो कि यहाँ पे शायद अवलांच आ सकता है, इस एरिया में शायद हिडन क्रेवासेस हो सकते हैं, यहाँ पे शायद आपको मौसम ख़राब, बादल देख के आप बोल रहे हो मौसम ख़राब हो सकता है। ये स्किल है जजमेंट का। ये जजमेंट का स्किल सिर्फ नॉलेज से नहीं आता, ये एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे हमारे फौज में होता है कि आप ऑपरेशन में कितना भी मर्जी कोर्सेज कर लो, कितना भी उसमें बेस्ट स्टूडेंट लेके आओ, जो एक्चुअल ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो अलग होता है, जो आपको सिखाता है कि ऑपरेशन कैसे करना है, प्रैक्टिकल सर, जमीन। प्रैक्टिकल। सो इन सब चीज़ों को टैकल करते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि माउंटेन आपकी सोच को भी बिगाड़ रहा है। जैसे आपने कुछ मूवीज़ में देखा होगा कि आप पर्टिकुलर मेज़ में जाते हो और वो मेज़ में आपके ऊपर साइकोलॉजिकल आप सोच नहीं पाते हो, आप इल्यूजन में चले जाते हो। सो माउंटेन इज़ डूइंग दैट टू यू ऑल्सो। तो इस सब में आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो टू द अल्टीमेट लेवल जो है वो चैलेंज हो जाती है। तो आपका वो प्रिपरेशन भी होना चाहिए। और जब आप वापस आते हो तो 2-3 इफेक्ट मैंने बहुत खास अपने में नोटिस किए हैं, या बाकी सब भी जो मेरे स्टूडेंट्स थे, इतने सारे वाइस प्रिंसिपल वहाँ पे NIM में निकले हैं या एक्सपेडिशन टीम में देखा है। तो एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ जो हर एक्सपेडिशन में होता है। जैसे हमारा एक एक्सपेडिशन था वर्जिन पीक का, झागू कांगड़ी। तो नाम हमने ही रखा था झागू कांगड़ी क्योंकि वर्जिन पीक था वो। इट वॉज 6240 मीटर्स। तो उसमें जो टीम मिली थी, तो मेनली जाट रेजिमेंट की टीम थी, जिनके कुछ 250 साल पूरे होने वाले थे, उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाद में बड़ा एक्सपेडिशन करने वाले थे। बट फौज में सिर्फ कोर्सेज के बेसिस पे आप डायरेक्टली एक्सपेडिशन में नहीं जा सकते हैं, तो एक्सपीरियंस टीम लीडर वगैरह चाहिए। तो उसमें मुझे एज टीम लीडर बुलाया गया था, और फिर वो जाट रेजिमेंट के अलावा बाकी थोड़े बहुत ट्रुप्स थे। तो 90% ऑफ द टीम वॉज कम्प्लीटली फ्रेश, सिर्फ कोर्सेज किए हैं, एक्सपेडिशन किया नहीं है। तो अभी तक माइंडसेट जो होता है वो सेट नहीं हुआ था एक्सपेडिशन के लिए। स्किल थे, फिजिकली बहुत टफ थे, बट अभी तक माइंड वाइज दे वेर नॉट सेट इनटू एक्सपेडिशंस। इस माउंटेन में स्पेसिफिकली, इस माउंटेन ने इतना कुछ थ्रो किया, मतलब जो एक माउंटेन की कैपेबिलिटी में होता है आपकी तरफ फेंकने का, वो सब कुछ फेंक दिया उसने। अवलांच में हमारा एक ऑफिसर फंसा, ठीक ठाक निकला। वहाँ पे वेदर ने तो हमारी मतलब जान ले ली ऑलमोस्ट।
उसके बाद टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा चाहिए थे, सब कुछ हुआ। अब उसमें फ्रेश टीम के साथ करना है, एरिया अननोन है। इस टाइम पे लोग इतने परेशान हुए हैं कि एक पॉइंट पे हम लोग 6 दिन के लिए फंस गए थे वेदर की वजह से, ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे हैं। अब माइंडसेट का यही मैं फ़र्क बता रहा हूँ कि मेरे जैसे कोई वो चिल था कि मौसम खुलेगा चले जाएंगे, जब भी खुलेगा राशन वापस मंगवाना पड़ेगा क्योंकि हम खा रहे हैं डेली, और उसके बाद वापस सेट करके फिर से आगे बढ़ते जाएंगे सेफ्टी का देखते हुए। इन लोगों का साहब डिसाइड कर लो आगे जाना है कि पीछे जाना है, साहब इधर नहीं बैठ सकते अभी। तो इस मौसम में लॉजिकली उनको भी पता है कि इस मौसम में नहीं निकल सकते, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, वो डेफिनेट कैजुअलिटी वाला चीज़ है। माइंड गिव अप करना, माइंड वो उस तरीके से चलता है। एंड फनी थिंग वाज, कोई बंदा आया बोला साहब मुझे ना सब उल्टी करनी आती जब मर्जी होता है, नेक्स्ट एक्सपेडिशन जाओगे ना सब, मुझे नहीं जाना आगे बेस कैंप के आगे। जब कोई बोलेगा बेस कैंप के आगे कंपलसरी जाओ, मैं उल्टी कर दूंगा सब बीमारी का करके। तो कोई बोला साहब मुझे मतलब पूरी एक्टिंग आती है, लो बैक पे एक वगैरह, ये सब आइडियाज़ उन्होंने निकाले कि अगली एक्सपेडिशन में बेस कैंप के आगे कैसे नहीं जाना है। तो ये सब उन्होंने डिस्कशन हुआ, और उसके बाद फिर जब मौसम ठीक हुआ, हमने असेसमेंट किया, एक दिन रुक के और फिर हम आगे बढ़े। तब तक हमारे 16 में से सिर्फ 6 बचे थे, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ बीमारी हुई, जनरली हुई। उनका बड़े मुश्किल से उस वेदर में इवैक्यूएशन भी हमने पीछे कराया बिफोर, इससे पहले कि उसकी क्रिटिकल कंडीशन हो जाए। वो अगेन जजमेंट वाली चीज़ है टीम लीडर की, विदाउट अ डॉक्टर आप वो जजमेंट लगा रहे हो। और फिर उसके बाद उनको वापस सेफ बेस कैंप में पहुँचाया, फिर वापस ऊपर आए, और फिर तैयार थे हम लोग, 6 लोग रेडी थे। उसके बाद जब हमने एक्सपेडिशन स्टार्ट की और जब फिर फाइनली समिट पे पहुँचे हम लोग, तो उसमें 3 दिन लगे हमको। और समिट पे जब पहुँचे, तो यही जो उल्टी करने वाला बंदा एंड ऑल दिस गाइज, वो वहाँ पे जैसे ही समिट पे पहुँचे और सामने पूरा ज़बरदस्त लैंडस्केप दिख रहा था, पूरा क्लाउडी था, नीचे पूरे क्लाउड्स थे और ऊपर उसमें से पीक्स एमिनेट हो रहे थे, अ ब्यूटीफुल व्यू। और सुबह सुबह की बात थी ये, तो सारे पीक्स जो है वो ऑरेंज कलर के दिख रहे, भगवे कलर के दिख रहे थे, विद दैट सनलाइट कमिंग इन, जस्ट फ्रेश सनलाइट। तो उस टाइम पे ये सारे जो लड़के थे जिन्होंने बताया था कि हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे ऊपर, वो सारे साहब, वो सामने जो समिट दिख रहा है ना सब, वो मैप में देखा था मैंने, वो वर्जिन पीक है साहब, अगली बार वो करेंगे साहब। दैट वेरी सेम गाय, ठीक है। वो मुझे कुछ मोटिवेशन की जरूरत उससे पहले पड़ी थी जब उनको आगे पुश करने के लिए, बट समिट पे जाने के बाद अगले एक्सपेडिशन के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं थी। नाउ व्हाट कॉजेज दिस सडन चेंज इज़ व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माउंटेन्स इन साइकोलॉजी, कि आप क्यों पेन लेने के लिए तैयार हो। आज तक मैं जितने भी एक्सपेडिशन में गया और मेरे साथ जितने भी गए हैं, हम सब ने अपने आप को गाली मारी है कि ज़रूरत क्या थी। देयर इज़ नो मटेरियल बेनिफिट टू इट। कुछ माउंटेनिंग का ऐसा कोई प्रमोशन में को बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है, स्पेशली ऑफिसर्स को इंडियन आर्मी में, नहीं है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट उसके अंदर नहीं है। बट क्या है जो आपको वहाँ पुश किया जा रहा है, और जो मतलब नहीं मिला तो आप बेचैन हो रहे हो, क्यों आप इतना पेन लेना चाहते हो। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग विच स्टार्ट्स देयर, एंड दैट इज़ वेयर प्रॉब्ली वाई आई से कि माउंटेनियरिंग इज़ द बेस्ट टूल फॉर लीडरशिप। क्योंकि आपको, जैसे हमारे कॉम्बैट में होता है, कोई अपने सिर्फ पगार के लिए, nobody is going to face a rain of bullets, ठीक है। what is it that motivates him to still go for it is the same thing in mountaineering। कुछ खास बेनिफिट नहीं है। इनफैक्ट जो सिविल से आ रहा है, आर्मी में तो चलो आपको गवर्नमेंट आपको स्पॉन्सर कर रही है, बट जो सिविल से आ रहे हैं उनको तो खुद पैसे दे के आ रहे हो, बट क्या है जो आपको पुश करता है, इट्स अ मिस्ट्री, बट इट्स समथिंग दैट चेंजेस योर लाइफ इन अ वेरी ड्रास्टिक मैनर, एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट विच आई हैव सीन इन लॉट ऑफ पीपल। दूसरा एक चीज़ होता है कि आप, जैसे आपको हर चीज़ की वैल्यू ना, जो आपको कभी रियलाइज़ नहीं हो सकती अदरवाइज। सिंपल सी चीज़ है, आप वहाँ पे गए, आप नीचे ज़मीन पे सो रहे हो टेंट लगा के, उसके नीचे कोई गद्दा नहीं होता, आपको चुभ रहा है हर जगह से, आप उसमें सो के आ रहे हो, तो वापस जब नीचे आते हो तो एक गद्दा देख के भी इतनी खुशी होती है, जो आप डेली लाइफ में एज्यूम कर लेते हो कि ये तो नॉर्मल चीज़ है। यू आर नॉट नेवर थैंकफुल फॉर इट, यू आर नेवर ग्रेटफुल फॉर इट, ठीक है। आपको गर्म पानी डायरेक्ट नल से आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप नहा पा रहे हो, 14 दिन नहीं नहाते हम लोग माउंटेन में, क्योंकि नहीं होता है। मेरे जैसे कोई साइको होगा थोड़ा सा, तो वो नाले में आते हुए ग्लेशियर से पिघलते हुए ठंडे पानी में नहा लेगा, बट हर कोई नहीं कर पाता। तो उसके अंदर फिर आप बिना नहाए आए हो, तो नहाना भी इतना बड़ा प्रिविलेज बन जाता है। देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इन लाइफ कि मेरे पास तो बहुत सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक 4x7 के टेंट में मैं आराम से 14 दिन निकाल लिया, without feeling need for anything else. That makes a huge difference in your life if we talk about the impact of psychology on, or spiritually also to the part in mountaineering.
Sir, so let's come to some real life scenarios, sir. How many Okay. peaks have you scaled, sir? I speak, I didn't keep a count, but around 6,000 meter peaks or little lower और above also. और 4 मैंने 7,000 मीटर पिक किए, जिसमें से एक तो हमारा बहुत पहले ख़त्म हो गया, मतलब कैंप 2 के बाद ही ख़त्म हुआ, बिकॉज एक बहुत ज़बरदस्त अवलांच आया था उसमें से। अभी मैं ज़िंदा होके अभी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यही बड़ी बात है, वही हमारे लिए खुशी थी। तो वो पिक हमको अबेंडन करना पड़ा, बिकॉज फिर जब हम सेकेंड अटैम्प्ट हमने डिसाइड किया था, बट नीचे आके 2 मेंबर की कंडीशन ख़राब हो गई थी, तो उसकी वजह से तो वो छोड़ के बाकी 4 तो हमने 3 7,000 मीटर पिक भी किए हैं। 8,000 में अभी तक आप कभी गए, कहीं गए नहीं? 8,000 देखो मेरा क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस अल्पाइन स्टाइल एक बोलते हैं, मैं उसको सेल्फ सफिशिएंट स्टाइल बोलता हूँ। तो आल्प्स यूरोप में है, हम हिमालय में कर रहे हैं, तो मैं अल्पाइन नहीं बोलता, बट सेल्फ सफिशिएंट स्टाइल को प्रमोट करना, खुद ही पहले तो करना और फिर प्रमोट करना उसको, क्योंकि इंडिया में इसका नहीं है ज़्यादा ट्रेंड। बाहर से लोग आके बहुत डिफ़िकल्ट पिक्स उस स्टाइल में कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पिक्स, टेक्निकल पिक्स उसी स्टाइल में हो सकते हैं। जो हम ट्रेडिशनल स्टाइल करते हैं विथ हेवी लॉजिस्टिक्स, उसमें नहीं हो सकता। So what is this alpine style, sir? सो एक होता है जिसको हम कहीं पे सीज स्टाइल बोलते हैं। सीज जो हम पहले करते थे, फोर्ट को सीज लगा रहे हैं, तो सीज स्टाइल बोलते हैं, या एक्सपीडिशन स्टाइल बोलते हैं, या ट्रेडिशनल स्टाइल बोलते हैं। उसके अंदर आप एक बड़ी टीम लेके जाते हो, उसके साथ लॉजिस्टिक्स भी उतने बड़े हो जाते हैं, और फिर आपके साथ पोर्टर्स वगैरह जाते हैं। वो जो जैसे मैंने बताया शेरपा होते हैं, शेरपा एक्सपीडिशन को लीड कर रहे होते हैं इन अ वे, और रोप फिक्सिंग वगैरह शेरपा कर रहे होते हैं। आप जैसे मैंने बताया जुमार नाम का इक्विपमेंट लगाते हो, और आप जुमार के सहारे बाकी सब मेंबर चलते हैं, तो वो हो गया ट्रेडिशनल स्टाइल। जो अल्पाइन स्टाइल या सेल्फ सफिशिएंट स्टाइल जो होती है, इसमें टीम बड़ी छोटी होती है, 2-3 मैक्सिमम 4 लोग। आपका जैसे मान लो, जैसे सतोपंथ ले लो, तो सतोपंथ के अंदर तकरीबन 1.5 किलोमीटर की रोप फिक्स होती है, तो आपको उतनी रोप कैरी करनी है कैंप टू कैंप। यहाँ पे अल्पाइन स्टाइल में जैसे हम गए थे, तो एक एनआईएम के इंस्ट्रक्टर थे, बहुत ज़बरदस्त इंस्ट्रक्टर थे मेरे साथ उस टाइम पे जब मैं वाइस प्रिंसिपल था, सूबेदार छत्तर सिंह। और उसके अलावा मेरा बड़ी था, जो उसकी फ़र्स्ट एक्सपीडिशन थी। हम 3 ही लोग गए थे। हम 3 लोगों में एक ही रोप कैरी की थी, और वही रोप आप एक पर्टिकुलर पैच में फिक्स कर रहे हो जहाँ पे डिफ़िकल्ट है, और फिर उसी को पीछे वाला निकालते हुए आ रहा है, फिर पहला वाला वापस फिक्स कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग कम्प्लीटली फिक्स्ड रोप जिसके ऊपर हर कोई जुमार लगा के एक के पीछे एक चले जा रहे हैं, आपको एक कंटिन्यूस, जैसे कैटरपिलर मूवमेंट होती है, वैसे आपको कंटिन्यूस एक एक रोप लगाते हुए जाना है। मेहनत, टाइम और एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है इसमें एज़ कम्पेयर टू दिस थिंग, बट आपके लॉजिस्टिक्स बहुत ईजी हो जाते हैं। तो आप लॉजिस्टिकली टाइम कम बिताते हो, क्योंकि आपके पास इतने लॉजिस्टिक्स हो जाते हैं ट्रेडिशनल स्टाइल में, तो आपको उसको इंडक्ट करने में ही बेस कैंप और उसके आगे आपका मैक्सिमम एक्सपीडिशन ड्यूरेशन उसी में चला जाता है, जो अल्पाइन स्टाइल में नहीं होता। आप क्लाइंब पे फोकस कर रहे हो ज़्यादा, और आपको तीनों को बहुत अच्छे क्लाइंबर होना ज़रूरी है, और बहुत अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, नॉट ओनली ऑफ क्लाइंबिंग बट ऑल्सो ऑफ रेस्क्यूइंग ईच अदर, क्योंकि आप छोटी टीम हो, 2 लोगों ने एक बंदे को वापस लाना है, इज़ नॉट ईजी। तो आपको करना कैसे ऑन अ टेक्निकली डिफिकल्ट स्लोप, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फर्स्ट एड आना चाहिए, आपको नेविगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वरना पता चला आप किसी और ही पहाड़ पे चले गए चलते चलते, सोच के कि आप उसी पहाड़ पे जा रहे हो। तो नेविगेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, वेदर का नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, और माउंटेन में वेदर इज़ दी प्राइम फैक्टर। वो किलर है, या तो वो आपका सेवियर है या आपका किलर है, दोनों भी वही काम कर रहा है, तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट अल्पाइन स्टाइल इज़ बेसिकली, लो लॉजिस्टिक्स, स्मॉल टीम एंड एक्सट्रीम क्लाइंबिंग, जिसमें टेक्निकल क्लाइंबिंग। अभी क्या होता है, बहुत लोग क्लेम करते हैं अल्पाइन स्टाइल, विच इज़ ओके, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट मेन इंप्रेशन ये चलता है कि अगर मैं खुद का लोड उठा के खुद चल रहा हूँ तो वो अल्पाइन स्टाइल हो गया। बट अगर वो माउंटेन ही नॉन टेक्निकल था, जिसमें कुछ टेक्निकल स्किल की ज़रूरत ही नहीं थी, देन कॉलिंग इट अल्पाइन स्टाइल विल बी स्लाइटली नॉट सो एप्ट। सो इट हैज़ टू बी अ टेक्निकल माउंटेन जिसमें टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ रही है, देन यू कैन क्लेम इट एज अल्पाइन स्टाइल। सर, सो यू सेड 6,000 के 6, 7,000 के 3। सर, कुछ तो खास इंसिडेंट्स हुए होंगे, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू हाईलाइट सर? वैसे तो कोई भी एक्सपीडिशन, स्पेशली हिमालयन एक्सपीडिशन बियॉन्ड 5,000 मीटर्स एटलीस्ट, इंसिडेंट फ्री तो हो नहीं सकता। हिमालय की खासियत, लाइक आई सेड, माउंटेन विल कीप थ्रोइंग थिंग्स एट यू। बट अगर मैं खास की बात करूँ तो एक, जैसे मैंने बताया था, एक 7,000 मीटर का था, तो त्रिशूली करके एक त्रिशूल फेमस है,
उसी नंदा देवी इसके ही साउथ एंड में त्रिशूल आता है, जो काफ़ी पॉपुलर है, लोग करते हैं। उसी के नॉर्थ एंड में एक त्रिशूली करके आता है, तो वो पीक हम करने गए थे, और वो उस तरफ से करने गए थे जहाँ से कोई गया नहीं है आज तक। तो ये हमारी अगेन स्मॉल टीम थी, अल्पाइन स्टाइल था, तो हम लोग 4 मेंबर थे जो जा रहे थे, और ये जॉइंट आर्मी की टीम थी और कुछ वेटरन्स थे साथ में, ऐसे मिला के टीम बनी हुई थी। वहाँ से जाते हो तो हम लोग बेस कैंप वगैरह सेट किया। बेस कैंप के पहले भी एक कैंप था, फिर बेस कैंप, देन कैंप 1 सेट हुआ, कैंप 2 सेट हुआ। कैंप 2 के आगे एक बाउल आता था बहुत बड़ा, बहुत मतलब उसमें आप ये मान लो कि 30-40 फुटबॉल फील्ड आएंगे, इतना बड़ा एक बाउल था। और उसके आगे एक पतली सी गली थी जिसमें हमको जाना था, और उस पतली सी की गली के एंड में एक हैंगिंग ग्लेशियर था। हैंगिंग ग्लेशियर इन द सेंस, ग्लेशियर ऐसे चल रहा है, वो बहती नदी है बेसिकली, फ्रोज़न नदी है ग्लेशियर मतलब। तो फ्रोज़न नदी चल रही है और बीच में एक बहुत ग्राउंड के अंदर खड़ा पार्ट आ गया, तो एक ग्लेशियर टूट जाता है और ये हैंग कर रहा होता है यहाँ पे। तो ये क्लाइम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, उसके एंगल और उसके हार्ड आइस होती है बिल्कुल। तो वो तो बात की बात हुई कि हमको क्रॉस करना था, उसको चढ़ना था बेसिकली। तो गली क्रॉस करना और इस बाउल को क्रॉस करना बहुत बड़ा रिस्की मैटर था, क्योंकि कंप्लीट एरिया अवलांच प्रोन था। और हमारे सामने जब हम कैंप 1 कैंप 2 में थे, डेली बेसिस पे कम से कम 3-4 अवलांच हम लोग आसपास देख रहे थे। हमारा कैंप बराबर साइटेड था, इट वाज आउट ऑफ डेंजर, बट हमारे बिल्कुल नज़दीक से होते हुए अवलांच जा रहा था, और अवलांच की डस्ट हमारे कैंप में आती थी, मतलब पूरा ब्लाइंड हो जाते थे हम लोग फॉर सम टाइम, क्योंकि वो डस्ट आती थी अवलांच की। तो अवलांच की बहुत अच्छी डस्ट आती है, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट में देखते हैं वैसी डस्ट आती है। तो ये बाउल जब हम क्रॉस कर रहे थे, बाद में गली में घुसे हम लोग। वो गली थोड़ी सी बहुत ही पतली सी थी, चलने के लिए एक आदमी एक टाइम पे चल सकता है, और उसमें कोई ऐसा प्रोटेक्शन नहीं था। साइड में पूरे स्लोप्स थे जो लूज रॉक से और स्क्री से भरे हुए थे। उस टाइम पे मैं लीड कर रहा था, बिकॉज अगेन इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था। तो छोटे छोटे रॉक पैचेस आते थे, मैं उस पर फिक्स करता था, सब आते थे 3 बजे के आसपास। तो इतना अवलांच प्रोन होने की वजह से रात को अवलांचेस कम आते हैं। तो नॉर्मली हम लोग 3 बजे या 1 बजे जो रात के हैं वो एक्सपीडिशन जो समिट का कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने प्रीवियस कैंप से, समिट कैंप से। यहाँ पे क्योंकि बहुत लंबा एरिया चलना था हमको इस अवलांच प्रोन एरिया में, तो हमने रात के 9 बजे स्टार्ट किया था। और उस गली में हम लोग 3-3:30 के आसपास थे, और तभी मुझे नींद आ रही थी काफ़ी, क्योंकि मैं लीड करते करते एनर्जी ये हो गई थी, टाइम था नहीं। तो मैंने बोला एक 15 मिनट का रेस्ट लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे चाय बनाएंगे, तब तक मैं 15 मिनट का रेस्ट लेता हूँ, आप लोग चाय बनाओ, फिर चाय पी के चल देंगे। वो शायद, अब क्या होता है यू नो एज एन ऑफिसर, जवान जो होता है ना वो कभी बोलेगा नहीं कि मैं साहब थक गए ब्रेक लेते हैं, बिकॉज जवान से टफर देन ऑफिसर्स यूजुअली। तो उसको ऑफिसर को बोलना कि साहब हम थक गए तो इसलिए ब्रेक लेते हैं, तो वेट कर रहे थे कि ऑफिसर कब बोलेगा ब्रेक लेते हैं। जैसे ही मैंने बोला वो वेट ही कर रहे थे। उन्होंने फटाफट रक्षा वगैरह खोली, बाहर बर्तन वगैरह निकाले चाय के। मैंने बोला यहाँ पे नहीं, गली के अंदर नहीं, क्योंकि अगर एवलांच आ गया तो हम बिल्कुल गली के सेंटर में हैं, हमारे पास कोई दौड़ने का एस्केप का रूट नहीं है। बोला ये साइड में जो स्लोप है थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिख रहा था, तो वहाँ पे बनाएगा। बोले साहब क्या ज़रूरत है, वो तो ऑफ रूट है, अभी रात के सुबह 3 बजे कौन सा एवलांच आता है। मतलब थेरी पे मत जाओ, ये थेरी कहती है, बट एवलांचेस कभी भी आ सकते हैं। फॉर्चुनेटली हम लोग ऊपर गए, वहाँ पे चाय बनाया उन्होंने, मैं लेटा हुआ था। वेरी नाइस ऑफ दोज गाइस, जैसे स्पिरिट होता है आर्मी में। उन्होंने मेरे ऊपर स्लीपिंग बैग निकाल के ऊपर डाल दी। मैं थोड़ा ठंड लग रही थी नीचे के रॉक्स से, तो अपने आप मैट निकाल के मेरे नीचे डाल दी, जो बड़ी काम आई हमको बाद में बचने में। तो ये हुआ, उन्होंने मुझे चाय के लिए उठाया, चाय का कप हाथ में पकड़ाया, और जैसे मैं पकड़ रहा था तब एक सडन बहुत बड़ा ब्लास्ट का आवाज़ आया। तो अवलांच हमेशा ब्लास्ट से शुरू होता है। ब्लास्ट का आवाज़ आया, कंप्लीट डिसोरिएंटेशन, क्योंकि सडन ब्लास्ट आ गया। फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि हमारे बगल से, मतलब बगल से इन द सेंस मेरे जूते को छू के वो अवलांच निकला है, उसी गली को पूरा कवर करते हुए, और वो गली भर गई। जो हम ऊपर गए थे वो तकरीबन एक 20-25 फीट ऊपर गए थे, और ये जो गली है इसके एक साइड पे हम लोग हैं, और ये पूरी गली जो है ये भर गई। मतलब अगर हम यहाँ पे होते तो हम इस पूरे मतलब के नीचे होते हैं। स्नो कॉलम के अंदर स्नो नहीं था, वही बेस्ट पार्ट था, इट वॉज एन आइस अवलांच। ये बहुत रेयर होता है। तो एक ग्लेशियर का पूरा हिस्सा टूटा। तो स्नो तो लूज सा होता है, इट्स लाइक ए पाउडर थिंग, जो बाद में टाइट हो जाएगा जब सेटल हो जाएगा। आइस तो हार्ड होता है, इट इज़ हार्डर देन रॉक, और उसमें काटने की ताकत इस डैगर से ज़्यादा है। आइस से कटता तुरंत है, अब सिर्फ हल्के से हाथ घुमा दो ये पूरा कट जाएगा। अब वो आइस के इतने बड़े बड़े ब्लॉक जब गिर के आए, अगर हमारे आसपास छू के भी जाते तो हमको पूरे काट के जाते।
मतलब हमारा वापस ढूंढना भी हमको पीसेस में होता अगर हम सही में उसमें फंसते तो। इट वॉज अ स्ट्रोक ऑफ लक, प्लस तब बंदों ने बोला कि साहब आपने तो मतलब हमारी जान बचा दी। आप वो उस टाइम पे तो इमोशनल हो जाता है जब ऐसा इंसिडेंस होता है, तो बोले साहब आप भगवान हो कि आप ऊपर ले आए हमको, अगर हम नीचे होते तो अभी ख़त्म होते हम लोग। सो दैट वाज वन वेयर you that judgment thing which I talked of कि leadership, even leadership or any kind of leadership in any kind of difficult situation is more about judgment than just skill. That is what brings in the experience part. तो वहाँ पे वो काम आया कि रिस्क जो है 3 बजे लोग सिखाते हैं कि 3 बजे अवलांच के चांसेस कम है, बट आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वो वहाँ पे काम आया। I think enduring the pain on yourself first, then passing it on to the others for the larger good. That is a judgment call. That is a judgment call and that has to be under mentorship. Yeah. आप सीधा एक्सपोज भी नहीं कर सकते हैं जस्ट बाय शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। आपको साथ देना पड़ेगा उनके साथ, जाके चलना पड़ेगा उनके साथ, फिर वो आपके एक्सपीरियंसेस सीखेंगे बजाय कि खुद के एक्सपीरियंस से, विच इज़ अ बेटर वे ऑफ लर्निंग। सर आप टीम लीडर हो तो सबसे आगे आप ही चलते हो क्या? हाँ, डिपेंड्स अगेन। देखो आप अगर लीडर हो और आप और लीडर बनाने चाहते हो तो हर जगह लीड करके वो स्पून फीडिंग हो जाएगा। स्पून फीडिंग से लीडर नहीं बनता। तो आपको वो कैलकुलेशन करना है कि कहाँ पे आपको उनको सर्टन अमाउंट ऑफ फ्रीडम देनी है, कहाँ पे लीड करने का मौका देना है अंडर योर सुपरविजन, ताकि वो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो कुछ गलत रिजल्ट से पहले ही आप उसको ठीक कर सको। तो ये चाहे आप एकेडमिक्स में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, आपको ये लीडरशिप पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा सो दैट यू पास ऑन दैट लीडरशिप टू समबडी एल्स। आप लीडर बन के कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप और लीडर्स पैदा नहीं कर सकते हो। सर तो वही वहाँ पे होता है कि कभी माउंटेनिंग में आई माइट बी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एक्चुअल फ्रंट, कभी आई एम गिविंग देम अ चांस टू लीड इन फ्रंट ऑफ मी, बट यू आर स्टिल ऑन द फ्रंट। तो फ्रंट में रहना ये नहीं कि आप सबसे आगे ही चल रहे हो, आप पीछे रह के भी आप फ्रंट में ही आप वो फ्रंट ही हैंडल कर रहे हो। ओके सर, सो सर हैव यू लॉस्ट एनीवन सर ड्यूरिंग माउंटेनियरिंग? ऐसा कुछ हुआ है क्या? I'll tell you why am I asking this question to you, sir, because we lost a coastmate, sir, Mount Trishul के एक्सपीडिशन में, नेवी का एक्सपीडिशन था 2021 में। We lost our coastmate, लेफ्टिनेंट कमांडर अनंत कुकरेती सर। ही इज़ 1-to-1 हंटर, रिमकोलियन है। तो उसके साथ साथ सर लेफ्टिनेंट कमांडर योगेश तिवारी, लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीकांत यादव। We lost all these officers, sir. I am aware of this expedition and the incident that happened. I think it was 2021. Right, sir, right. Yeah. Right, So sir. I was vice principal at NIM that time. और हमारी एक टीम गई थी जिसने हेलीकॉप्टर रेकी किया था about that incident, and it was a major incident if you look at mountaineering records. So yes, last year हमारा एक एक्सपीडिशन गया था। there is a very famous peak in Ladakh, Mount Nun. तो झंस्कार रेंजेस में आता है वो। तो झंस्कार रेंजेस के हाईएस्ट पीक्स है माउंट नुन एंड माउंट कुन। देर आर ट्विन पीक्स, एक ही माउंटेन है लेकिन पीक्स अलग है, दोनों के रूट भी बहुत अलग है। तो वो दिन था, आई थिंक इट वाज अ डूम्स डे, बिकॉज हमारी एक्सपीडिशन तो जा ही रही थी। ये किसी एक रेजिमेंट की एक्सपीडिशन थी जो उस पीक पे मैं लेके जा रहा था एज टीम लीडर। उसी टाइम पे कुन पे भी एक एक्सपीडिशन जा रही थी जो कि इंस्ट्रक्टर्स टीम थी, एक जो माउंटेनिंग के इंस्ट्रक्टर्स थे उनकी एक टीम जा रही थी, और एक सिविल एक्सपीडिशन भी थी। तो ऑन द सेम डे वी लॉस्ट 1 JCO हमारे टीम में से। दो वी कुड सेव 5 अदर्स जो एक्चुअली रिस्क में थे, जिनको रेस्क्यू की ज़रूरत थी, और वो JCO वाज पार्ट ऑफ दैट रेस्क्यू। वो फिट थे उस टाइम पे जब हमने रेस्क्यू स्टार्ट किया था। वो 5 को तो हमने बचा लिया, बट वो JCO का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जो अनप्रेडिक्टेबल था। उसी टाइम पे सेम कुन पे जो इंस्ट्रक्टर्स की टीम जा रही थी उनके भी 4 लोग, दे लॉस्ट 4 पीपल इन दैट एक्सपीडिशन। 2 रूट्स अलग थे, हम लोग कहीं मिलने नहीं वाले थे, बट इट वॉज द सेम माउंटेन एज सच। तो वो दिन था, वो वेदर था जो ख़राब हुआ था। तो हमारी जो सेकेंड टीम थी, जब माउंटेन में आप जाते हो तो आपकी अगर बड़ी टीम है तो आप 2 पार्ट में समिट टीम निकालते हो समिट के लिए, ताकि एक टीम जब समिट कर रही है तो दूसरी टीम उनके हेल्प के लिए रेडी हो समिट कैंप में। तो वैसे पहले टीम का हो गया था, और सेकेंड टीम हमारी जो थी वो जा रही थी समिट के लिए। उसमें 3 मेंबर ने समिट किया, एक्सपीडिशन सक्सेस हुई, वो वापस आए समिट कैंप की तरफ। हम लोग उसके एक नीचे इमीडिएट कैंप में थे, वेटिंग फॉर देम टू कम बैक, उनके लिए स्टैंड बाय में थे हम लोग। और वो जब वापस समिट कैंप आए तो समिट कैंप से उनको अगले दिन नीचे आना था टू दिस कैंप वेयर वी वेयर। तो उस टाइम पे जब उन्होंने स्टार्ट करना था, जो समिट से वापस आते थे मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था, और वो 3 मेंबर जो समिट करके आए थे
उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई उस ख़राब मौसम की वजह से। तो हाथ में भी उनके फ्रॉस्ट बाइट हुआ और काफ़ी देर तक वो हॉस्पिटलाइज रहे बाद में उस फ्रॉस्ट बाइट की वजह से। और ऑलमोस्ट अगर थोड़ा और देर होता तो शायद नीचे आके दे वुड हैव लॉस्ट देयर फिंगर्स ऑल्सो, एम्पुट हो जाते हो। बट फॉर्चुनेटली इतने हद तक नहीं हुआ, बट ऑलमोस्ट 2 महीने तक उनका ट्रीटमेंट चला उसके बाद। तो वो जब समिट कैंप में आए तो ये जेसीओ वहाँ पे थे समिट कैंप में, और एक अफसर भी थे, और इनके साथ हमारी बातचीत हुई, मेरी बातचीत हुई, और वो थोड़े से पैनिक स्टेट में चले गए थे, जो होता है कभी कभी माउंटेनियर्स के साथ भी। उसमें से एक्सपीरियंस सिर्फ ये जेसीओ थे, बाकी सब ऑलमोस्ट नए थे, 1-2 लोग थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था। तो उसके बाद उन्होंने जेसीओ के साथ मेरी ज़्यादा बात हो रही थी क्योंकि वो ठीक ठाक कंडीशन में थे। उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले साहब ऐसे ऐसे इनकी कंडीशन हो गई है, इनको लाना मुश्किल हो रहा है। मैंने साहब लाना तो है ही, वो तो फ़ौज का उसूल है कि आप किसी को ऑपरेशन हो या माउंटेनियरिंग हो, आप लेके गए हो तो जो भी हो आप वापस तो उसको लेके आओगे ही। तो मतलब साहब लाना तो है ही, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप ऊपर से स्टार्ट करो। अब हमारा क्योंकि ऑलरेडी समिट अटेम्प्ट हो चुका था, हमारे जो फर्स्ट टीम थी, तो सबकी हालत बहुत ख़राब थी, सब एग्जॉस्टेड थे बहुत बुरी तरह। तो उसमें चाहे आपकी कंडीशन जो भी हो, आपका सिचुएशन आपको कॉल करता है, आप जाओगे। तो उसमें 3-4 मैंने लोगों को निकाला जो हम लोग ऊपर जाने के लिए रेडी थे, और एक कोई रेस्क्यू टीम, क्योंकि ये मौसम का प्रेडिक्शन आ चुका था और वो हमको पता चल रहा था कि सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो एज इट इज़ रेस्क्यू टीम बुलाई गई थी। बट वो लैंड नहीं हो पाई, हेलीकॉप्टर से आया था, सिर्फ एक ही उनका एनसीओ जो था वो लैंड हो पाया था, बाकी टीम आ नहीं पाई रेस्क्यू की वहाँ पे। तो वो उसके साथ और हम 3-4 लोग हम लोग वहाँ से निकले, ऊपर गए। हमको वो 5 लोग मिले जिनकी कंडीशन ख़राब थी, और उनको देखते ही मुझे साया ऑफ रिलीफ मिला एज टीम लीडर कि ये ठीक ठाक है, मुझे मिल गए ठीक ठाक। मतलब कंडीशन तो ख़राब थी, बट इस कंडीशन में है कि मैं नीचे लेके जा सकता हूँ इनको। तो लास्ट मेंबर को देखते ही फिर मैं भी उनके साथ नीचे आ गया, पीछे ऑफिसर जेसीओ रह गए थे, जेसीओ सबसे लास्ट में थे। तो मेरे साथ जो एडवेंचर विंग का फ्रेश नीचे से आए थे, बिकॉज वो इतना थका हुआ नहीं था, वो फ्रेश आया था, तो वो आखिर तक गया। और पूरा नीचे आने के बाद, और इसमें जो वो लास्ट पार्टी आ रही थी उनका रेडियो सेट गिर गया और वो क्रेवास में चला गया, तो कम्युनिकेशन टूट गया। तो उसके बाद हम नीचे आ गए, सब ये जो मेंबर्स थे इनको पूरा जो ट्रीटमेंट होता है, जो फ्रॉस्ट बाइट के लिए ट्रीटमेंट होता है, वो देना शुरू कर दिया हमने, और सबको खाना पीना खिलाना, चाय पिलाना सब शुरू कर दिया। और उसके बाद जो दवा करके था, जो इंडिविजुअल एडवेंचर विंग का रेस्क्यू टीम के लिए आया था, वो ऊपर जो सबसे लास्ट तक गया था, वो शाम के 8-8:30 बजे के आसपास वो वापस हमारे पास कैंप में पहुंचा। और मैंने बोला कि सब आ गए, कोई रह गया? वो जेसीओ साहब का है। तो बोला कि साहब वो उनको मैं नहीं ला पाया। और वो जेसीओ जो है वो बोले कि साहब वो ऐसे घिरे हुए थे, आइस वॉल थी, 70 डिग्री की आइस वॉल थी वहाँ पे, उसके ऊपर वो लटके हुए थे ऑलमोस्ट, बिकॉज रोप लगी हुई थी और रोप के साथ वो उन्होंने खुद को एंकर किया था। बट वो टोटली इमोबाइल थे, उनके आई बॉल भी मूव नहीं कर रहे थे, एंड ही हैड लॉस्ट हिज सेंसेस, और वो सिर्फ सामने देख रहे थे, बट ही वॉज ब्रीदिंग, ही वॉज दैट वे ओके। बड़ा पजलिंग था हमारे लिए उस टाइम पे कि ये कंडीशन कैसे अचानक से हो गई। तो वन पर्सन हु वाज एक्चुअली ब्रिंगिंग एवरीबडी और फिट थे, ये अचानक से कैसे हो गया। होता है माउंटेन में कभी कभी आपकी बॉडी शॉक में चली जाती है इन बैड वेदर एंड ऑल। बट बाद में रियलाइज़ हुआ हमको जब नीचे आके पोस्टमार्टम हुआ कि एक्चुअली वो एक बहुत हल्का सा फॉल हुआ था उनका वॉल पे, बट वो जैसे मैंने बताया आइस वॉल थी, आइस इज़ हार्डर देन रॉक। तो वो फॉल का इम्पैक्ट ऐसा हुआ, वो थोड़ा गलत टाइप का फॉल हो गया कि उनका एक सर्विकल जो बीच में स्पाइन होती है, वर्टिब्रा होता है आपका, उसमें एक पार्ट में फ्रैक्चर हो गया, और उसमें वो सारा न्यूरोलॉजिकल जो कॉर्ड्स होते हैं वो दब गए उसमें, एंड ही वेंट पैरालाइज्ड ऑन द स्पॉट। उसके वजह से वो हिल नहीं पाए और वो वहाँ पे पड़े हुए थे। तो ये नीचे आने के बाद उसने बताया, तब तक बहुत टाइम जा चुका था और तब तक मौसम ऐसा कंडीशन ले चुका था कि टेंट के बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उस टाइम पे नाउ एज अ टीम लीडर आई हैड टू टेक अ डिसीजन। अब माउंटेन में जब आप सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स भी करोगे, और ख़ासकर जब मैं वाइस प्रिंसिपल था और ये कोर्स चलाता था, तो फर्स्ट थिंग पहले लेक्चर में बताता था कि रेस्क्यू को आपको उसी तरीके से प्लान करना है और एग्जीक्यूट करना है कि रेस्क्यूअर को रेस्क्यू की ज़रूरत ना पड़े, बिकॉज फिर वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर रेस्क्यूअर को भी रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ी तो वो डिफ़िकल्ट हैंडल करना एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर डिफ़िकल्ट होता है। तो वो बैकग्राउंड में मुझे वो थॉट रखना था, लेकिन अपना साथी ऊपर है, छोड़ नहीं सकते, ये भी बैकग्राउंड में था। सो इट वॉज अ वेरी टफ डिसीजन वेदर टू गो बैक और नॉट इन दिस काइंड ऑफ वेदर, जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
कि हम खुद ही कैजुअलिटी बन जाए जो रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। तो पहले तो मन बनाया कि हाँ जाना है। अब क्योंकि हम एक समिट अटेम्प्ट करके फिर बाद में वो समिट वाले भी आए थे वापस, और रेस्क्यू भी एक हो चुका था ऑलरेडी, जिसमें 5 लोगों को उस मौसम में हमने बचाया जो बहुत डिफ़िकल्ट था, वो आ भी गए हैं। अब सबकी एग्जॉस्टेड कंडीशन, सुपर एग्जॉस्टेड कंडीशन है। उसके बाद फिर अभी इनको लेके जाना ऐसे मौसम में, बट 3 और 4 ऑफ अस डिसाइडेड कि हम जाएंगे, और हम मुश्किल से 25 फीट जा पाए, और मौसम ने उसके आगे जाना अलाउ नहीं किया। इट वाज समथिंग दैट विल पावर भी वहाँ पे मार खा गई। पूरा जोर लगाया, सब कुछ हुआ, बट देन इट वाज रियलाइज कि हम डेफिनेटली हमको कुछ हो जाएगा, और फिर हमको रेस्क्यू करने वाला कोई नहीं बचा अभी। तो दैट वुड हैव रियली कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। अब नाउ इट वाज अ चॉइस बिटवीन पुटिंग मोर लाइव्स एट रिस्क और सेविंग दैट वन लाइफ। सो हम लोग वापस आए कैंप में, बिकॉज नहीं जा पाए आगे। थोड़ी देर रुके कि मौसम ठीक हो जाएगा। मौसम ठीक होने के बजाय उल्टा और बदतर होते जा रहा था। रात के 11 बजे के आसपास आई फेल्ट दैट अनइजीनेस कि मैं बैठ नहीं सकता यहाँ पे, बिकॉज जेसीयू स्टिल देयर आउट देयर एंड ही इज़ नॉट मूविंग। और ठंड इतनी बहुत ज़्यादा हो रही कि हम फिट स्टेट में बाहर नहीं जा पा रहे, वो वहाँ पे लटके हुए हैं। एंड दैट वाज प्रॉब्ली द वर्स्ट फीलिंग आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ। कुछ ना कुछ हादसे सबके लाइफ में होते हैं, किसी भी फील्ड में, नॉट नेसेसरी माउंटेनियरिंग में, बट दिस फीलिंग आई डोंट थिंक एनीथिंग इज इवन क्लोज टू इट। सो फाइनली आई डिडंट, अब मैं किसी और को रिस्क में डाल नहीं सकता था। बाकी मेंबर्स भी उतने वैल्यूएबल है मेरे लिए जितना वो मेंबर है। एक 11 बजे मुझे कुछ हुआ। आई जस्ट गॉट अप, वोर माई शूज़ एंड एवरीथिंग। कुछ लोग आधी नींद में थे। अब हालत ऐसी हो गई थी कि एक टेंट में जहाँ पे सिर्फ 3 लोग सो सकते हैं, वहाँ पे हम लोग 5-5, 6-6 लोग दबके गए, तो एक दूसरे के ऊपर पैर रख के सो रहे थे। अब नींद तो आ नहीं रही थी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। तो मैं उठा, मैंने किसी को कुछ बताया नहीं, अपने शूज़ वगैरह डाल दिया। सब लोग आधी नींद में थे, टाइप एग्जॉस्टेड पूरे। शूज़ वगैरह डाला, सब इक्विपमेंट वगैरह लिया, और बाहर निकल गया। और मैं ये सोच के निकला था कि हुआ तो मुझे ही कुछ होगा, अकेले चलता हूँ और देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। जैसे मैंने बताया, अल्पाइन स्टाइल में वो स्किल होता है कि रेस्क्यू करना विद इन ए स्मॉल टीम, विच इज़ वेरी रेयर। जैसे वो जो लास्ट तक गया था, उसने भी यही बताया कि बोला साहब मैं अकेला कैसे करता, जबकि वो वैसा होता है। अगर आप टेक्निक जानते हो तो आप कर भी सकते हो। वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, बट कर भी सकते हो। तो मैं निकला वहाँ से, इक्विपमेंट वगैरह लिया, 10 मीटर भी नहीं चला होगा मैं, और सब कुछ जम गया, हाथ पैर दिख नहीं रहा कहाँ पे जा रहा हूँ, पूरा वाइट आउट हो रखा है। बट मुझे पता था जनरल डायरेक्शन ये है, कहीं ना कहीं तो वो रोप मिल जाएगी। पहले स्टार्ट में रोप नहीं थी, कहीं ना कहीं तो वो रोप मिल जाएगी। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी कहो, ये एक मेरा मेंबर वॉशरूम के लिए किसी के लिए बाहर आ गया, और उसने देखा कि एक ऐसी दिख तो कुछ रहा नहीं था ज़्यादा दूर का। उसने देखा कि हेड टॉर्च एक ब्लर सी जाते हुए दिखाई दी। उसने पूछा कौन है, मैंने बताया मैं हूँ, तुम अंदर रहो। मैं बोला साहब कहाँ जा रहे हो? गोइंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी नहीं था, क्लाइंबिंग रूट की तरफ था। बोला साहब कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज आई डेंट वांट समबडी टू से कि साहब आप अकेले नहीं जा सकते, मैं भी आऊँगा, वो मुझे चाहिए नहीं था। तो मैं बोला मैं आ रहा हूँ। बोला साहब आप साहब के लिए जा रहे हो क्या? मैं बोला हाँ जा रहा हूँ, जाना पड़ेगा किसी को तो। बोला साहब आप क्या कर रहे हो? एंड ही इज़ वेरी आर्गूमेंटेटिव नहीं था वो, बट अ वेरी इनोसेंट क्वेश्चन पुट सेंस इन मी। जो मैं कर रहा था एक्चुअली बेवकूफ़ी थी, बिकॉज टीम लीडर का, खासकर जब पूरी टीम में बहुत कम एक्सपीरियंस लोग हो, तो टीम लीडर को कुछ होना बिकम्स इवन बिगर ट्रेजेडी। वो हैंडल कैसे करना है। तो बोला साहब आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? दैट वाज वन क्वेश्चन विच स्टॉप मी, एंड दैट पुट सेंस इन मी कि मतलब मेरा तो वापस आना बहुत कम चांसेस ठीक ठाक थे, जैसो को लाना तो छोड़ दो। दैट पुट सेंस इन मी थोड़ा बहुत कि व्हाट यू आर डूइंग इज डिस्टेंस सर, जो बंदा यहाँ पर है और आपका टेंट है, तो डिस्टेंस में मीटर किलोमीटर में नहीं पता होगा, क्योंकि माउंटेन में हम उसमें बात नहीं करते, क्योंकि फीट्स आपके हर एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। कहीं कहीं पे आपको 300 मीटर चलने के लिए 1 घंटा लगेगा, ठीक है, वो कहीं कहीं पे आप 300 मीटर नॉर्मल प्लेन की तरह चलोगे, तो हम टाइम में बात करते हैं। तो दिस वॉज समवेयर अराउंड 3 आवर्स के आसपास जहाँ से हम थे वहाँ तक, उन तक पहुँचने में लग जाते हैं, और ख़राब मौसम में शायद उससे ज़्यादा, तो एटलीस्ट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ टाइम लग जाता। फिर वो मुझ में सेंस डाला, बोला साहब मत करो ऐसा, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर हम तो पूरे लॉस्ट हो जाएंगे कि क्या करना फिर उसके बाद अगर आपको कुछ हुआ तो। एंड ही वॉज द गाय हु ब्रॉट मी बैक इनटू माय टेंट। एंड पूरी रात मौसम वैसे ही चला,
सुबह 10:30-11 के आसपास मौसम खुला। जब फाइनली फिर रेस्क्यू टीम पहुंच पाई, बिकॉज मौसम खुल गया तो वो लैंड हो गई। एंड फिर हमारे मेंबर्स तो एग्जॉस्टेड थे, तो जो हेलीकॉप्टर्स आ रहे थे रेस्क्यू टीम को ड्रॉप कर रहे थे, उसी में मैं अपने मेंबर्स को बिठा रहा था और वापस इवैक्यूएट कर रहा था इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग डाउन, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टेड स्टेट थी इतना रेस्क्यू वगैरह ख़राब मौसम में रहते हुए। और मेरे तो ऑलमोस्ट 6 रातें वहाँ पे निकली थी उस कैंप में, जो हमने सिर्फ एक्चुअली 2 रातें बितानी थी। तो बाद में फिर सबको, सारी मेरी टीम निकल गई, इनके 6 मेंबर जो थे रेस्क्यू टीम के वो लैंड हो गए, एंड आई स्टेड बैक विद द रेस्क्यू टीम। और उसके बाद फिर बिकॉज गाइड करने वाला कोई तो चाहिए साथ में, तो उसके बाद फिर देन दैट रेस्क्यू टीम वेंट अप। तो अभी पूरी रात इस मौसम में बाहर वो है विदाउट मूविंग, तो वी न्यू व्हाट द रिजल्ट वाज। इट वुड हैव बीन अ मिरेकल विच वी आर होपिंग फॉर। बहुत ही पता नहीं क्या भगवान को क्या क्या प्रार्थना की होगी कि कुछ तो करो, कुछ जादू कर दो, बट मुश्किल था। तो वी न्यू व्हाट वाज दैट थिंग। तो फिर वो बाद में वो टीम उनको लेके नीचे आई, एंड दैट वाज वन मोमेंट वेयर आई रियलाइज्ड कि दिस व्हाट फौज हैज़ टॉट यू। काफ़ी सारे एक्सपीडिशन में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है किसी एक्सपीडिशन में ये चीज़ें, बट फौज में जो फीलिंग होती है, अब वो जेशो को मैं सिर्फ उस एक्सपीडिशन में मिला था, उससे पहले नहीं जानता था, उसके कोई हमारी सर्विस साथ में नहीं थी। बट द काइंड ऑफ बॉन्ड दैट यू क्रिएट इन फौज, वो बॉन्ड्स बहुत अलग होते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली आपको उसमें मोल्ड किया गया, आपका वो बिहेवियर हो गया है। आप किसी भी जवान को मिलते हो, पहली बार भी मिले हो, या आप किसी कोर्समेट को भी मिलते हो, आप सीधा फैमिली में कौन क्या ये सब ये आपके नेचुरल है, यू गेट इनटू इट, वो हो ही जाता है, एंड दैट क्रिएट्स अ बॉन्डिंग विच इज़ ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम बॉन्डिंग। और माउंटेनिंग में तो आप ये सुबह शाम कर रहे हो, आप चलते हुए बात कर रहे हो एक दूसरे से, आप बैठे हुए हो 2-2 घंटा कहीं पे किसी कैंप में, कहीं मौसम ख़राब है तो आप एक टेंट में बैठ के बात कर रहे हो, आपके पास बातें करने के लिए टाइम है, तो आपका तो बॉन्डिंग किसी और लेवल पे चले जाता है। सो दैट वाज वन एक्सपीडिशन विच taught me what we have been made by Forge, and made me realize in fact कि क्या हम है, and it has affected me in more ways than one, और कभी भूल नहीं पाऊँगा इस चीज़ को। एंड कोई भी फेलियर आ जाए लाइफ में, दिस विल बी माई बिगेस्ट फेलियर इन माई लाइफ। Sir, you mentioned about so many institutes now for training. So I want to touch more about HOS. What is HOS? या अच्छा, दैट आई डेंट मेंशन बिकॉज वो फौज का है। तो हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल दैट इज़ इन गुलमर्ग, सोनमर्ग, इन सब मेन सेंटर इज़ इन गुलमर्ग। हॉज में फ़र्क ये है एज़ कम्पेयर टू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट्स, उसमें माउंटेनिंग तो सिखाते हैं, बट इट इज़ अबाउट वॉरफेयर स्कूल। तो हाई एल्टीट्यूड में वॉरफेयर कैसे करना है, चाहे आप वो कारगिल का एग्जांपल ले लो, जहाँ पे लक्ष्य मूवी देखी होगी, तो लक्ष्य मूवी जो एक्चुअल थोड़ा एग्जैजरेटेड सीन्स है उसमें, वो शायद रिक्वायरमेंट होती है, बट वही ऑपरेशन एक्चुअली कोई कर चुका है, और वो अभी लद्दाख में ही है। ही हैज़ ऑल्सो टेकन रिटायरमेंट, आई विल नॉट मेंशन नेम फॉर सिक्योरिटी रीजंस, बट ही वॉज द वन हु कैप्चर्ड वन पोस्ट जो उनके नाम पे ही है आज के डेट में पोस्ट। 7 दिन वो बिहाइंड एनिमी लाइन रहे हैं और उस क्लिफ को चढ़े हैं। इन लक्ष्य इट लुक्स मच ईजियर देन वॉट इट वॉज एक्चुअली। आपको एक रियलाइज़ करना है कि जब आप माउंटेन में एक रॉक क्लिफ के ऊपर रोप लगा रहे हो, आपको उसके अंदर जैसे पिटॉन बोलते हैं, एक कील की तरह होता है डिफरेंटली डिज़ाइंड, उसको रॉक में ठोकना है। अब आप ठोकोगे तो आवाज़ होगी तो दुश्मन को पता लगेगा आपका। अगर वहाँ पे दुश्मन 100 लोग बैठे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ 10 या 12 की टीम लेके जा रहे हो, आपका एडवांटेज क्या है? सरप्राइज़, क्योंकि इस साइड से वो एक्सपेक्ट नहीं करता आपको, ये आपका एडवांटेज है। वो एडवांटेज ख़त्म हो जाएगा अगर दुश्मन को पता लगेगा कि आप इस तरफ से आ रहे हो, और फिर आप एट कंप्लीट डिसएडवांटेज हो। अ वेरी स्मॉल टीम हैंगिंग ऑन अ रोप और आपके ऊपर फायर आ रहा है, आप हथियार पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप रॉक को पकड़ के बैठे हो, तो वो कंडीशन में आप फंस जाओगे। तो कितना हाई रिस्क ऑपरेशन है जो हुआ था। तो ये सारे हॉस के मेंबर्स थे जिन्होंने ये सब, हॉस क्वालिफाइड लोग थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया था। इट्स अ वेरी वेरी हाई रिस्क ऑपरेशन, एंड लाइक कॉर्पोरेट ऑल्सो वी कैन से लाइक बिजनेस, दे हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स, वैसी वाली चीज़ थी इसके अंदर, एंड हायर द लॉसेस ऑल्सो। दे डिड इट सक्सेसफुली, और वो पोस्ट कैप्चर किया था विदाउट मच फायरिंग, बिकॉज सिर्फ उनको शेयरली देख के कि पीछे से कहाँ से चढ़ के यहाँ पे आ गए, ये देख के ही पाकिस्तान फौज वहाँ से पोस्ट वेकेट करके निकल गई थी। बस उनका पहुँचने ही बहुत था, उसी वजह से वो पोस्ट मिली हमको, जो लास्ट पोस्ट बची थी जो किसी भी तरीके से सामने से कैप्चर नहीं हो पा रही थी।
तो ये वाली जो चीज़ है ये हॉज में सिखाई जाती है। उसके अलावा विंटर वॉरफेयर भी सिखाते हैं। विंटर वॉरफेयर और माउंटेन वॉरफेयर में फ़र्क ये है कि विंटर में जब सब कुछ स्नो क्लैड हो चुका है तो उसमें तो चलना भी इम्पॉसिबल होता है। जैसे सियाचिन में हम चलते थे, कभी स्नो गिराए तो हम लोग यहाँ तक गड़ते थे। तो कभी कभी आप लिटरली पूरा लेट रहे हो स्नो के ऊपर और हाथ पैर से जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो वैसे आपको स्नो का पैच कवर करना पड़ता है। और खासकर काराकोरम जहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ था तो वहाँ पे भी स्नो, पाउडर स्नो बोलते हैं उसको, वो स्नो बहुत ही हल्की होती है। उस स्नो में कुछ जान ही नहीं होती है, तो आप पैर रखते आप सीधा डूब जाते हो। जैसे बहुत फनी इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ। मैं पोस्ट पे था एंड मैं रिलीव हो रहा था, मेरे जगह कोई और ऑफिसर आ रहा था। हम नीचे वापस आ रहे थे मेरी पार्टी के साथ कि ऑफिसर को बीच में मिलना था और ब्रीफ करना था। तो जैसे हम हैंड हीटिंग ओवर बोलते हैं जैसे फ़ौज में, तो नीचे जा रहा था, मेरे सामने एक स्काउट चल रहा था और हमारा पोस्ट जो था वो पाकिस्तान से पूरा डोमिनेटेड था। 5 पाकिस्तानी पोस्ट हमारे पोस्ट पे डोमिनेट करती थी। तो नीचे चल रहा था वो, आगे चलते चलते, और तभी स्नोफॉल हुआ था काफ़ी देर, 3 दिन कंटिन्यूस स्नोफॉल हुआ था। तो मैं पीछे किसी से बात कर रहा था और आगे जाके देखा तो ये गायब है, दिखाई नहीं दे रहा। तो सब ढूंढ रहे उसको, कहाँ गया है? अभी तो था सामने, रिज लाइन है सामने, पूरी वैली दिख रही है, कुछ तो निशान होगी, अगर नीचे गया कुछ तो होगा, है ही नहीं कुछ। जब मैं थोड़ा आगे गया तब दिखाई दिया कि वहाँ पे गड्ढा बना हुआ था जहाँ पे खड़ा था। तो वो स्नो इतनी लाइट होती है कि रॉक के बीच में जो गैप होती है वो तो स्नो से भर गई है, अभी आपको पता नहीं लग रहा। उसने थोड़ा सा कदम इधर रखा, क्योंकि हम लोग कुत्ते के स्टेप्स फॉलो करते हैं वहाँ पे कुत्ते जो होते हैं वो पहाड़ी कुत्ते, वो हमारे साथ ही चलते हैं हमेशा। उसका स्टेप्स फॉलो करो, आप सही ट्रैक पे चल रहे हो। उसने थोड़ा सा बस कदम यहाँ पे रखा और वो 2 रॉक के बीच में जो बर्फ़ भरी हुई थी उस गैप में वो घुस गया अंदर, और अंदर दब गया, और उसके ऊपर तुरंत स्नो ने उसको कवर भी कर लिया। बस उसके 2 हाथ ऊपर रह गए थे, क्योंकि वो घुसते हुए ऐसे ऊपर घुसा। उससे पता चला हमको कि भाई साहब यहाँ पे है। फिर वो तो निकालना ईजी, बिकॉज स्नो टाइट होती नहीं है जल्दी, अनलाइक उत्तराखंड हिमाचल की स्नो अलग है। तो वो टाइम पे ऐसे टेरेन में आप कैसे जाओगे, तो उसमें स्कीज़ का यूज़ करोगे। जैसे पीछे वो एक स्नो बोर्ड रखा हुआ है, ये यूज़ होता है उसे स्नो पे चलने में। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करके, उसके साथ साथ हॉर्स में तो मतलब स्कीइंग अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। आप हॉर्स के इंस्ट्रक्टर्स को देखोगे, वो स्की करते करते साथ में राइफ़ल लगी होती है और साइड में टारगेट होता है और उस पर फायर कर रहे होते हैं और टारगेट हिट भी कर रहे होते हैं। और आप स्पीड आपकी तकरीबन 30 to 40 किलोमीटर/आवर की स्पीड से जा रहे हो आप, और तब आप उसको बैलेंस भी कर रहे हो और हिट भी कर रहे हो टारगेट को। इतना स्किल लेवल उसमें आता है। सो दैट इज़ द ओनली डिफरेंस, दैट देयर इज वॉरफेयर ऑल्सो अलॉन्ग विथ माउंटेनियरिंग बिटवीन हॉर्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। Sir, so one last classic question, sir, Yeah. before we actually wind this up. What is so special about Mount Kailash? Oh, yeah. Now, Mount Kailash is a mysterious mountain filled with lot of myths. अब वो myths है, facts है, वो तो माउंट कैलाश का क्या है, रिलीजियस उसकी एक सैंक्टिटी मानी जाती है, जो टिबेटन साइड पे भी मानी जाती है, अपनी हिंदू धर्म में भी मानी जाती है कि वो शिव का अबोर्ड है, शिव वहाँ पे रहते हैं। अब इसको तो ऑब्वियसली चैलेंज करने वाले लोग तो बहुत हो गए, क्योंकि रिलीजियस मिथ जहाँ पे आया, रिलीजियस बिलीफ जहाँ पे आया, वहाँ पे चैलेंज करने वाले लोग होते हैं। तो इसको पास में चैलेंज भी किया गया। तो पहली बात तो काफ़ी लोग जाते ही नहीं हैं, काफ़ी देर तक वो बैन भी था उसके ऊपर क्लाइम करना, चाइना की तरफ से भी, चाइना ने भी बैन कर रखा था। तो एंट्री जो रूट है वो इंडिया साइड से है, नेपाल साइड से है? नहीं, चाइना वैसे तो वो पूरा के पूरा टिबेट में है, तो मतलब इंडिया में तो कुछ पार्ट ही नहीं है माउंट कैलाश का। No, my question is कि when we have to go, तो we have to go through, we have to take Tibet, through Tibet. हाँ। Okay. तो आपका जो मतलब जो कैलाश यात्रा बोलते हैं, तो कैलाश यात्रा भी हम लोग चाइना से वीज़ा लेते हैं, क्योंकि टिबेट अभी उन्होंने कब्जा कर रखा है, बट अदरवाइज वहाँ से जाते हैं हम लोग। तो कैलाश पे कोशिश की कुछ लोगों ने, बड़ा मुश्किल से सैंक्शन लेके, आई थिंक एक ब्रिटिश टीम थी और आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यूएस या यूरोपियन टीम थी जिन्होंने कोशिश की थी, और उन्होंने जो एक्सपीरियंसेस शेयर किए ऑन रिकॉर्ड है, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, जो किसी माउंटेन पे नहीं होते। माउंटेन पे काफ़ी सारे इलनेसेस होते हैं, हैपो होता है, हैको होता है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग इलनेसेस होते हैं जो और कहीं नहीं होते। आपको यहाँ पे कभी हैको नहीं होगा, वो सिर्फ माउंटेन में अल्टीट्यूड में ही होगा। तो माउंटेन स्पेसिफिक यहाँ की बीमारी तो होने वाली है, लेकिन माउंटेन स्पेसिफिक बीमारी भी एडिशनल होती है, वो उनको एक्सपीरियंस नहीं आया वहाँ पे। वो अलग एक्सपीरियंसेस आए जहाँ पे वो टोटल इल्यूजन में चले गए, खुद को भूल गए, खुद के घर वालों को भूल गए। टाइम में उनको लैप्स लगा कि उनको ऐसा लगा कि मैं 1 साल बाद 2 साल बाद वापस आ रहा हूँ। जब वापस आए, ऊपर तो पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि मैं घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ रहा हूँ, जबकि माउंटेन में मुश्किल है, आप एक रिज लाइन फॉलो कर रहे हो। तो जंगल में हो सकता है कि आप घूम फिर के वहीं पे आ जाओ, आप रिज लाइन पे चल रहे हो और चढ़ रहे हो, मतलब ऊपर ही जा रहे होगे।
बट वो घूम फिर के वहीं पे आ रहे थे। उनके हार्ट रेट पूरा चेंज हो गया, उनका सोच ही पूरी लॉस्ट हो गई, कम्प्लीटली डिसइल्यूजन्ड। ठीक है, उनको नेगेटिविटी फील हुई बहुत ज़्यादा। तो मौसम ठीक था, सब कुछ ठीक था, उसके बावजूद ये सब हुआ उनके साथ। सो दोज वर द एक्सपीरियंसेस जिससे फिर लोगों को समझ में आया कि कुछ तो इसमें है, कैलाश में कुछ ना कुछ बात है। और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई ऐसे मिथिकल कहानियाँ नहीं है जो इन दोनों ने एक्सपीरियंस की है, और 20th सेंचुरी की कहानियाँ हैं, बहुत पुरानी भी कहानियाँ नहीं हैं। सो देयर इज़ वन लामा जो टिबेटन लामा है, जिनका क्लेम मतलब जो स्टोरीज़ में है कि वो कैलाश पे गए थे। उनके एक्सपीरियंसेस ज़्यादा ऊपर जाके क्या हुआ वो नोटेड नहीं है, बट अदरवाइज ही इज़ द वन हु हैज़ क्लेम कि वो कैलाश चढ़ के आए। उस टाइम पे ना मीडिया था, ना कुछ था, नो इंटरनेट, नो टीवी, नो टेक्नोलॉजी टू प्रूव। जैसे आप माउंटेनिंग में आप सबमिट करते हो तो आप प्रूफ लेके आते हो कि मैंने सबमिट किया था विद टेक्नोलॉजी, वो नहीं था। सो नोबडी नोज। देन देयर आर अदर इंसिडेंसेस लाइक वहाँ पे स्टडी हुआ था, वहाँ पे प्लेन्स हेलीकॉप्टर्स भेजे गए थे टू चेक कि क्या है यहाँ पे। वहाँ की रेडियो एक्टिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी वॉज वे डिफरेंट देन एनीवेयर एक्सपीरियंस, इवन बर्मुडा ट्रायंगल फॉर दैट सेक। उससे मुकाबले भी मतलब प्लेन का नेविगेशन लॉस्ट हो गया एंड ऑल दिस थिंग्स, जो सिर्फ उसके आसपास जाने से हुआ। उसके ऊपर कदम भी नहीं रखा है, उसके बहुत नज़दीक भी नहीं गए हैं, बट इतने में ही ये एक्सपीरियंसेस आए। सो कैलाश एक मिस्ट्री तो है। देयर आर सम हु क्लेम, सम साइंटिस्ट, सम पीपल, सम others people who are studying a lot of alien technology and all, they say that there is something inside that mountain, it is not a natural mountain. उसके ऊपर वो माउंटेन की तरह बना है। एक तो उसकी सिमेट्री भी ऐसी है जो माउंटेन में बहुत ही रेयर है कि इतना सिमेट्रिकल माउंटेन हो, तो बहुत शेप अलग है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल माउंटेन्स। तो वो कहते हैं कि शायद एलियन सैटेलाइट अंदर है या एलियन स्पेसशिप है जो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। सो नोबडी नोज़ कि एग्जैक्टली क्या है, बट दीज आर द मिथ्स एंड एक्सपीरियंसेस जो वहाँ पे हुए हैं। सो इट इज़ स्पेशल। So given a chance, sir, would you like to climb in alpine style? कैलाश, हाँ. सी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाट्स देयर। ठीक है, पहली बात तो एक्सपीरियंस सुन के तो यू शुड टेक इट फॉर ग्रांटेड कि शायद आप वापस ही ना हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मुझे लगे कि हाँ आई नीड नो रिटर्न, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो टू कैलाश। बट वन थिंग इज़ वेरी क्लियर, इफ़ आई एवर गेट दैट चांस टू गो टू कैलाश, और शायद अगर मैं समिट चढ़ भी गया, I will not talk about that experience anywhere because there is so much of belief. I will Roger Federer, नहीं one of the Roger Federer बोलो, sorry वो तो टेनिस के है। ठीक है, so I don't know why I'm forgetting the name now. Reinhold Messner, one of the greatest mountaineers till date in the history of mountaineering. बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं उनके, और उनके अचीवमेंट सरपास करना आज भी मुश्किल है। वो उनको ऑफ़र किया गया था कि आप कैलाश चढ़ के देख लो एक बार क्या है, क्योंकि वो बहुत इम्पॉसिबल एक्सपेडिशन उस टाइम पे कर चुके थे। तो उन्होंने वो ऑफ़र डिक्लाइन कर दी थी। उन्होंने बोला कि मैं अगर जाऊँगा भी और चढ़ूँगा और वापस आऊँगा तो इतनी जो करोड़ों जनता की जो बिलीफ है ना, उसको तोड़ने के बराबर होगा वो, एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट। तो उन्होंने कोशिश भी नहीं की। जिन्होंने कोशिश की उनका एक्सपीरियंस तो मैंने बताया, शायद उनको भी वही एक्सपीरियंस आता मेसनर को। बट द पॉइंट इज़ कि उन्होंने ये मान के चला कि मैं वो बिलीफ को तोड़ना नहीं चाहता। So if again your question, if I ever go and if I do summit and come back, I will not talk about it. That's for sure. Take me along, sir. I have nothing to lose. With pleasure, with pleasure. But you have to learn mountaining first. Yeah, sir. Why not? Why not? Yeah, and alpine style. Alpine style, yes. That makes sense now. So, sir, you spend so much of time, sir, in mountaineering, and you've plethora of experiences. I can see that, sir, because vice principal, NIM. एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ बहुत लोग सोचते हैं यार मेरा नंबर लगना चाहिए। यहाँ तो बेसिक माउंटेनिंग कोर्स में नंबर लगाने के लिए 1 साल 2 साल का वेटिंग है। तो सर टू स्मॉल क्वेश्चन सर, एक्सीडेंट्स आपने इतने देखे हैं सर, तो इनको अवॉइड कैसे करें, एंड व्हाट्स योर फ्यूचर, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ सर? ओके, सो लाइक एनी अदर स्किल, आप किसी में गुजरे हो जो हाई रिस्क एलिमेंट है उस वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको स्किल्स एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड, एक्सीडेंट्स में देयर वाज अ वेरी रीसेंट एग्जांपल आई सॉ इन सह्याद्रीज। हम लोग मानते हैं कि सह्याद्रीज में क्या होगा, हिमालयज इज बिगर थिंग। सह्याद्री में नंबर ऑफ डेथ्स आर हैपनिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन ईयरली बेसिस।
वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनएक्सपीरियंस लोग वो ट्राई करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी कैपेसिटी ट्राई नहीं की है। और फिर मेंटोरशिप भी कभी कभी होती है लेकिन सही नहीं होती है, या फिर होती ही नहीं है, बिकॉज उसको लाइटली लेते हैं। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। अभी रिसेंटली एक मैंने एक्सीडेंट देखा जस्ट लास्ट ईयर, जहाँ पे अ पर्सन डाइड आउट ऑफ अ वेरी स्मॉल निग्लिजेंस, बहुत ही छोटा निग्लिजेंस था। देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड तेलबेला, ठीक है, एक क्लाइंबिंग पिच है वहाँ पे से वो गिरा, जहाँ से आज तक कोई नहीं गिरा हुआ, और ही पास्ट अवे। द वर्स्ट पार्ट वॉज द रिएक्शन आफ्टर दैट ऑफ दैट टीम विच वॉज हैंडलिंग दिम। जो टीम आई थी फ्रॉम मुंबई, उनका रिएक्शन जो था, ठीक है, तो वो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज ऑफ टाइम कंस्टेंट, बट अदरवाइज वो आप एज एक्सपीरियंस क्लाइंबर भी थे उसमें दो, बट उसके बावजूद इंसिडेंट के बाद जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन का ट्रेनिंग करने के लिए जो फौज में हमको सिखाते हैं, और ये मैंने काफ़ी एक लकुना देखा है जो बाहर जब लोग एक्टिविटी प्लान करते हैं, चाहे वो नॉर्मल एक्टिविटी हो चाहे एडवेंचर हो, कि कंटिजेंसी प्लानिंग इज़ एब्सोल्युटली लैकिंग और इनएडिक्वेट। वो चीज़ पे आपको बहुत ध्यान देना है कि क्या क्या गलत हो सकता है और उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो बंदा बचने के चांसेस तो कम थे क्योंकि बहुत बड़ा फॉल हुआ था उसका, 20 अराउंड 10-12 मीटर का फॉल स्ट्रेट हुआ था, फ्री फॉल हुआ था, लेकिन फिर भी उसमें जान थी। तो उसके लिए जो कर सकते थे वो नहीं किया गया था, काफ़ी डिले हो गया उसके रेस्क्यू में, और शायद वो बचने के एटलीस्ट 1% चांस था जो निगेट हो गया बिकॉज ऑफ रिएक्शन। सो बिकॉज नोबडी हैड थॉट कि ऐसा हो भी सकता है और इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये एक एस्पेक्ट माउंटेनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लाइक आई सेड, आप कितनी भी तैयारी से जाओ, ऑब्जेक्टिव हज़ार से जो आपको फेस करने हैं, जो आपके साथ हो सकते हैं, चाहे आपने सारे सेफ्टी मेजर्स 100% केटर किए हो, स्टिल इंसिडेंट्स कैन हैपन विथ यू. So that contingency planning is one thing which people should learn for safety. And the second part is what you asked about, what is the future. So exactly get into this. जो हमारे पास कल्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ है, जो सेल्फ सफिशिएंट स्टाइल में चढ़ने का, बहुत यंग लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी फिट पीपल, बहुत मोटिवेटेड है और कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्योंकि वो मेंटरशिप, वो गाइडेंस नहीं है जिन्होंने खुद कर रखा है, जिन्होंने ट्राई कर रखा है, तो कई बार वो फंस भी जाते हैं। जैसे शिवलिंग में एक आए थे मेरे पास गाइडेंस लेने, बट मेरे गाइडेंस के हिसाब से मैंने उनको बोला आप जाने के लिए फ़िट नहीं हो, आप मत जाओ। वो गाइडेंस उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने जाने का तो डिसाइड कर लिया था, गए, फंस भी गए, ऑलमोस्ट दे हैड फेस्ड डेथ बाय दैट टाइम। फॉर्चुनेटली पॉलिश टीम भी साथ में चढ़ रही थी तो उन्होंने बचा के उनको लेके आ गया। वो चीज़ें जो है, तो इस तरीके से अनरेगुलेटेड और क्वालिफाइड तरीके से चलने से अच्छा है। माई एम इज़ टू spread this culture, to spread the knowledge that I have gained, experience that I have gained in specifically alpine style. जो सतोपंथ किया है, माउंट DKD1 नए रूट से किया था हमने विद NIM इंस्ट्रक्टर्स, उसके बाद त्रिशूल में उस स्टाइल में किया था। सो ये सब जो एक्सपीरियंस गेन किया है, ये शेयर करके लोगों को एक्चुअली उसमें स्किल बांटना, एंड देन फॉलो अप विद द मेंटरशिप सो दैट दे गेट दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड बिल्ड अप द कम्युनिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ क्लाइंबर्स। ताकि अभी जो चल रहा है कि वहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे गोदी में जो हिमालय है उसमें जाके वो ऐसी अचीवमेंट्स कर रहे हैं और अपने तरीके से नाम दे रहे पीक को, और फिर वापस चले जा रहे हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए हिमालय को लेके वही रूट्स, वही ट्रेडिशनल रूट्स, वही स्टाइल में किए जा रहे हैं। ये सब को चेंज हो जाए एंड वी स्टार्ट डोमिनेटिंग दिस माउंटेनिंग फील्ड इन इंडिया, एटलीस्ट इन द हिमालयस, जो कि हिमालयस इज़ द मेक्का ऑफ माउंटेनियर्स। आपको कितने भी अच्छे माउंटेनियर, आप कहीं पे भी जाओ, आपको फाइनली खुद को माउंटेनियर प्रूव करने के लिए हिमालय में ही आना है, जो हमारे पास है। सो वी शुड टेक दैट इनिशिएटिव, दैट इज़ द एम ऑफ वट एवर आई डू इन द फ्यूचर, बेसिकली इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन normal as well as alpine style of climbing. That's the way. So wish you all the best, sir. Thank You know, may this come true, and I'll be your student. Thank you so I would much. like to learn from the person himself. It's Yeah. not the institute; it's the instructor. Yeah. And such a wonderful instructor sitting in front of me on my set. Thank you so much for this time, sir, that you have given and helped us understand क्या है Indian Army and mountaineering, because and the combat. Yeah. It's not just the mountaineering, but it's Yeah. the combat also. So thank you so much for coming to the show, sir. Yeah. Thank you so much for watching this show. Please do like, share, subscribe my channel. आप सब्सक्राइब करते रहोगे और मैं ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के गेस्ट को लेके आता रहूँगा, एंड आई थ्रो मोर लाइट नो इंडियन आर्म फोर्सेस बाय रॉजर दैट विद NKC, ऑसर लाइक क्वालिटीज़ की कहानी, ex GTO की जुबानी, पावर्ड बाय ऑलिव प्लैनेट,
manufacturers of premium military gear. Thank you.